today's session as we navigate through the often intimidating but quite fascinating field of research papers. I hope you're all having a very fantastic day. And if not, well, don't worry. Because I'm so sure that by the end of the session, you'll be feeling 10% smarter, 50% more productive, and 100% convinced that research papers are not, in fact, secret codes written by aliens or something. Before we dive into today's session, I am truly delighted to welcome back someone many of us might recognize from last year's phenomenal 10-day workshop on research and statistics, Dr. Kulvinder Singh sir. That series was so well loved कि अगर research और statistics समझाने का Olympics होता तो sir would surely have won the gold medal. Sir is a distinguished retired professor in education from Punjabi University, Patiala. He brings with him over 3 decades of experience in psychometric tool development and statistical analysis. But wait, there's more. Beyond academia, he's a key player in policy research, especially in areas related to sustainable development goals and inclusive development. Basically, making the world a better place, one where research policy at a time. So, having him back with us today feels like revisiting a favorite book, a place which always has something new to share, something new to teach. So, without further ado, let's get started, sir. आप please शुरू करें. Thank you, my dear scholar. Thank you, sir. Thanks for your nice words. ओलंपिक्स होते ना मेरा भी हाल उस जैसा होना था जो हरियाणा की प्लेयर थी नॉकआउट में ही चले जाना था बाहर है चलिए today when we are starting with this webinar on the issue of basically review of literature or review of later literature. So when a researcher either at post-graduation level or for the graduation courses or for his or her PhD degree or even for some project activity as a teacher. So the first question comes, what I am to do? Either it is suggested by some agency, some senior teachers or the faculty, or depending upon the circumstances that this area of research needs more exploration. So this is the purpose when we start with the research journey on any issue, any variable. Uh, 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 I say over here with the very clear mind that no variable gets old. All variables which measure human behavior in one way or the other are still as relevant as they were relevant around 150 years ago. No variable has changed its meaning. Only the question is, with the help of the research techniques, with the help of the data from different set of people all over the globe, that some new finding, new insights got into the researcher's mind to name one kind of human behavior as variable A, B, or C. But ironically, it remains the study of human behavior. For example, intelligence. We are studying intelligence for the last around 1 century. Exactly, we start with the Thorndike, but still we are not able to define what exactly intelligence is. Still, we are wondering. So, research is going on. How intelligence is contributing to um, either developmental stages or to the achievement or the success of the student. Again, it remains a matter of uh, research for us. As a scholar, I suggest you to go through newspapers occasionally every day for 10 or 15 minutes and look into the content which relates to our education. Education which we are receiving either as a student of MA education, MA psychology, or MA social work, or MA sociology. Each and every news which pertains to the
social order or any kind of social behavior, either economic or political, relates to the human behavior. So we have to be very clear about this thing that our source of information which comes directly to us is through newspaper, which is daily on our desk, either in the form of print medium or through the e-medium. One paper we must study. अ, कैसे कि स्कूल में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। अभी हायर एजुकेशन में हमारा यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आ गया 2025 का, उसमें क्या कह रखा है। एनईपी 2020 है, उसमें क्या कह रखा है। अभी तक हम उसको पढ़ रहे हैं, अभी तक हमारे को पूरा समझ नहीं आ रहा उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। इतना फिलोसफिकल है, इतना मनोवैज्ञानिक है। देन एनसीएफ स्कूल एजुकेशन टीचर नॉट टीचर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का आ गया। एनसीएफ 2023 का ड्राफ्ट आ गया है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूवल नहीं दी है। एनसीईआरटी लगातार काम कर रही है, यूजीसी कर रही है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कर रही है। तो एज अ स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन, irrespective of discipline, I will say including sciences, we must know little bit of the education system by virtue of which we are being educated. Because when a child enters into school, or a student who is a school pass out enters into college, or a college pass out enters into the university, he or she has come to learn. So what is learning? Modification of behavior, acquisition of knowledge, acquisition of skills. So at any stage of education, even after passing out your graduation or post graduation or even completion of your PhD degree, still we are to continue learning. It is lifelong learning. NEP has the key word of lifelong learning. So what does it include? Once again, human behavior in the late 40s, in the late 50s, what you as a student of psychology say, life cycle. We say childhood, adolescence, early adulthood, which is the youth period, then late adulthood, then old age, then going into that age group in which I am there, where I am reaching around 68. I will be touching 70 by next year. So still I am learning, I am growing. I am not getting old. I am getting old physically, but as as a as a learner, I am growing. Every day I get some new information. Whether that information is true or not, I search for its truthfulness. And search for truthfulness is the essence of research. So जो अखबार में लिखा है, टेलीविजन न्यूज़ सुन रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन है। जब उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, दिस मीन्स हमारे पास ज्ञान पहले से होना चाहिए। वो ज्ञान कहाँ से आएगा? एक तो ज्ञान आएगा हमारे पास हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, नंबर एक। दूसरा कहाँ से? विवेक से आएगा, रैशनैलिटी से आएगा, लॉजिक से आएगा, रीजन से आएगा। तो लॉजिकल होना, रीजनिंग ठीक होना, परसेप्चुअल स्किल्स का स्ट्रांग होना। हमने एज एन एजुकेटेड पर्सन वो देखना है जो लेमैन को नहीं दिखता है। चाहे डॉक्टर बीमारी को देखता है ना, जो बीमार को नहीं दिखती है, उसके परिवार को नहीं देखती है, तो हम वो रिसर्चर हैं जिन्होंने समाज के अंदर किसी प्रकार का भी जो डिसऑर्डर आया है या किसी प्रकार का कोई विकार आ रहा है, उसको हमने पहचानना है। लेमैन नहीं पहचान पाएगा। वो हमारे को कोई साइट दे सकता है, कोई हमारे को हिंट दे सकता है, लेकिन उसकी एक्सप्लोरेशन का मेथड हमने याद कर रखा है। हमने एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेज में ऑलमोस्ट एक जैसी टेक्निक को अडॉप्ट कर रखा, विच वी नो से इट इज साइंटिफिक मेथड। And when we say it is scientific method, we are essentially governed by the principle of inductive deductive reasoning. And to begin with research process, we go into the deductive process. We deduce, we hypothesize. So without knowing what has already happened, we cannot say that my work is new one, no one has worked on it. I may not be knowing, but the same area might have been explored much earlier,
might have been being explored by many people all over the world, which I am not conversant with. So review of literature makes us conversant with regard to the already existing knowledge with regard to that particular theme or area. So this is the essence with which we start with the research process. So process of inductive deductive, and in that case we start with the deduction. So deduction means from the known to unknown, and for knowing we must explore the literature. So one source which I just shared with you, that is the newspapers, magazines, then we say journals, then we say books, edited books, reference material, and then any kind of interview or any kind of the anecdote which has been given by some significant person. For example, Amartya Sen, for any Nobel laureate, maybe in the field of science or in the field of social science or in the field of literature, any social activist. Uh, I may agree with all the social activists, I may disagree with some of them, but the thought and ideas of any social activist, either with the environment or with the legal affairs, is a is a part of authentic knowledge because of the conviction, because of the expertise, because of the experience that person has gained. To name a few, we talk about बहुगुणा जी, मूवमेंट, एनवायरनमेंट का मूवमेंट अब उन्होंने तब शुरू करा था जब हमको एनवायरनमेंट, हम कहते हैं इसका क्या होना है, तो उसका विजन देखिए आप। आज के हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मेजर इशू क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज। और इंडिया का जो भी इकोनॉमिक सर्वे आया है लास्ट ईयर, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, लास्ट वीक, नॉट लास्ट ईयर, 1 फरवरी को हमारा इकोनॉमिक्स बजट पेश होता है, 28 को इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो उसके अंदर रिपोर्ट हुआ है कि जो 7 सबसे ज़्यादा खतरनाक देश हैं, जो कहीं भी कोलैप्स पे खड़े हैं, वल्नरेबल बोलते हैं, वल्नरेबल वर्ड है, तो इंडिया रैंक 7th amongst those countries who are prone to any kind of disaster because of the climatic changes. So how to look after that? Where to begin with? How to do it? So that process of knowing, that is our journey for review of literature. So when we say deduce, I start collecting information. We will be moving to the empirical work within some minutes. So when we say I study one research paper, one piece of essay, one piece of article, one book, or one particular thematic presentation by somebody, so that information is with me. Now, all that information spans from 1 page to 100 pages. So what I am to have it skimming? When we say it is skimming, so when we start reviewing literature, it's a matter of skimming. Uh, अभी मेरे को शुभम जी कह रहे थे कि वो उसमें से लेना कितना है, निकालना कितना है। तो मैंने स्किमिंग तो आपका वो है, क्या बोलते हैं, मक्खन है ना, वो तो जब हम दूध रिड़कते हैं तो मक्खन आना है, तो वो उसमें से हमने वो जिस्ट ढूंढना है जो उसकी ई सेंस है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कहते हैं, फिनोमोलॉजी के अंदर कहते हैं ई सेंस क्या है, तो उस इसेंस को ढूंढना है, उसकी फ्लेवर को ढूंढना है, फ्रेग्रेंस को ढूंढना है कि वो किस दिशा में बात कर रही है। तो ये इतना पायस एक्टिविटी है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इट वेरी पायस एक्टिविटी। पढ़ना, समझना, फिर पढ़ना, फिर समझना कि मेरे समझने में क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर कई इंट्रिकेसी हो सकती हैं, तो उसके जो टेक्निकल जार्गन है उसको समझना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कहीं पे गलती भी हो सकती है, उसने करे, जो व्यक्ति ने काम कर रखा है उससे गलती हो सकती है, तो क्रिटिकल भी होना पड़ेगा। उसको हम बिल्कुल वर्बेटम ट्रुथ नहीं मान के चलेंगे, उसको हमने एक लॉजिक के ऊपर, एक रीजनिंग के ऊपर देखना कि वो क्या उसने सही भी कर रखा है। वी विल शेयर इट इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विच आई हैव शेयर्ड विद द टीम ऑन 3 पेपर्स। पहले पेपर में जो हम करेंगे उसमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले वो बातें हैं, कई बातें जो
बहुत जरूरी है स्कॉलर के लिए। तो उस बात से आगे बढ़ते हुए जो हम कह रहे हैं कि एक रिसर्च पेपर से हम क्या ढूंढते हैं, जो मैंने आपसे शेयर किया है, वो पहली स्लाइड जो थी ना, वो जो फ्लो चार्ट है, यस सर, वो मैं दिखा दे रही हूँ। हाँ डिस्प्ले में ला दीजिए उसको। उसको हम 2 मिनट में फाइंड अप कर देंगे। हाँ, आ गया वो स्क्रीन पे। यस, टॉप पे लिखा है रैपिडली स्किमिंग पब्लिश्ड रिसर्च वर्क। तो उसके अंदर 3 कॉलम दे रखे हैं। पहले में क्या देख रहा है, टॉपिक एंड पर्पस उस रिसर्च का। जब भी हम कोई रिसर्च पेपर उठाते हैं, कोई बुक उठाते हैं, उसके टाइटल से हमारे को एक अंदाजा होता है कि इसके अंदर ये होना चाहिए। वो हमारी रिसर्च का टॉपिक भी बन सकता है या उससे जुड़ा हुआ टॉपिक भी हमारा हो सकता है। देन टाइप ऑफ रिपोर्ट कैसा है वो, उसके ऊपर आ गया है। और तीसरी है उसकी फाइंडिंग और कंक्लूजन, कि वो स्टेटस का कह रहे हैं कि वो स्टेटस रिपोर्ट है या कोई डॉक्यूमेंट की शक्ल कैसी है, ग्रुप कंपैरिजन करे गए हैं या रिलेशनशिप करे गए हैं। जो ग्रुप कंपैरिजन करना है या रिलेशनशिप करना है, ये दोनों बातें हमारी रिसर्च का कोर है। तब हम कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, ग्रुप कंपैरिजन भी। और जब हम कहते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप तो हम कोरिलेशन से देख रहे हैं। कोरिलेशन की कई टाइप्स हैं। प्रोडक्ट मोमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, स्पीयरमैन रो है, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन है, और कोरिलेशन की कई टाइप्स हैं। और जब हम कहते हैं ग्रुप कंपैरिजन, हम जो लड़के लड़कियों को कंपेयर करते हैं, रूरल अर्बन को कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन करते हैं। तो जब कंपैरिजन करते हैं, वहाँ से भी हम कोई कुछ ढूंढ रहे होते हैं। वो कंपैरिजन से मतलब है कि जेंडर डिफरेंशियल कहीं एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब तो लड़के लड़कियां बराबर हो गई हैं, अब क्या जरूरत है करने की, है। देखो कितनी लड़कियां पढ़ गई हैं, देखो कहीं कहीं देखो सारी जगह लड़कियां दिख रही हैं। इज इट ट्रूथ? क्वेश्चन ये है, कितनी लड़कियां या औरतें अनपढ़ हैं? जो देहात में रहने वाले मेरे स्कॉलर हैं, हमारे टीचर साहबान भी हैं, वो देखेंगे जो मनरेगा में लेबर है उसमें मोर देन 50% वुमेन हैं जो अनपढ़ हैं, अनस्किल्ड हैं, गरीबी में हैं। तो हमारे देश का अभी सेंसस नहीं हो पाया है 2011 से आगे। 21 में आना था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। पर अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया है फॉर एनी रीजन। और तभी कभी ये कहते हैं कास्ट सेंसस करा लीजिए। सेंसस कोई भी होना चाहिए। वी मस्ट नो द पॉपुलेशन, अवर कंट्री पॉपुलेशन, उसकी डायनेमिक्स क्या है। सेक्स रेशियो बार बार क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि सेक्स रेशियो में डिक्लाइन हो रहा है। जब हम कई बार नहीं कहते हैं, अक्सर वो पिछली सेंचुरी से अभी तक ऑलमोस्ट यही दिखता आ रहा है कि सेक्स रेशियो में कंटिन्यूस डिक्लाइन है, कि नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड मेल कम होती जा रही हैं। फिर लड़की जो ज्यादा दिख रही, कहाँ से दिख रही ज्यादा, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा ये रिसर्चेबल क्वेश्चन है। फिर कहते लड़के लड़कियां तो बहुत पढ़ गई हैं, बहुत पढ़ गई, कॉलेज देखो, यूनिवर्सिटी देखो, लड़का नजर नहीं आता है। फिर लड़का नजर नहीं आता, लड़कों की गिनती ज्यादा है, मेल की गिनती ज्यादा है, नजर आता नहीं है, तो कहाँ गए वो? बहुत ये क्वेश्चन पैराडॉक्स है। इसका आंसर कोई नहीं दे पा रहा है अभी तक। क्योंकि लड़कों की गिनती या मेल की गिनती फीमेल से ज्यादा है, लगातार एक सेंचुरी ज्यादा है, तो इतना डिसइक्विलिब्रियम है मेल फीमेल की रेशियो में। तो जो लड़कियां हमारे को दिख रही हैं, पढ़ी लिखी, नौकरी करती दिख रही हैं, स्कूलों में टीचर दिख रही हैं, सर्च करती नजर आ रही हैं, उनकी गिनती लड़कों से बहुत ज्यादा है, तकरीबन हर कहीं ज्यादा है। तो फिर लड़के कहाँ पे हैं? मैं तो लड़कों को ढूंढ रहा, लोग लड़कियों को ढूंढते हैं, मैं लड़कों को ढूंढ रहा हूँ, है। इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना जरा इस बात पे। इट इज अ मेजर इशू विद अस। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी का, वो लड़कियों के साथ वितकरा हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन जब हम क्राइम देखते हैं, वायलेंस देखते हैं, किसी प्रकार का हम अन्याय देखते हैं, उसमें लड़की और औरत ज्यादा विक्टिम बनती है। जो पढ़ रही है, स्टडी कर रही है, और उन लड़कियों की अगर समस्याएं जब सुनते हैं, तो वो समस्याओं का रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
अभी एक स्कॉलर हमारा मेंटल हेल्थ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार हो रहा है, वो स्कॉलर फिलोसफी में पीएचडी कर रहा है, वो ज्वाइन नहीं करेगा आज, तो वो आज पेपर तैयार कर रहा है। तो उसका जो पेपर का थीम है दैट इज मेंटल हेल्थ ऑफ द कंजेंटिकली डिसेबल्ड एडोलसेंट गर्ल्स। तो उसने जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके जो केयर है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें एथिक्स की वैल्यू ढूंढ रहा है। वो फिलोसफी में काम कर रहा है लेकिन डिसेबल्ड बच्चों पे कर रहा है, और 6 लड़कियों का वो डाटा लेके उसकी बात करने जा रहा है उस पेपर के अंदर। जो लड़कियां डिसेबल्ड हैं, जन्म से ही डिसेबल्ड हैं, और उनको देख रेख कैसे हो रही है, तो उनको देखने वाली माता कैसे देख रही है, उसके भाई बहन उनको कैसे देख रहे हैं, और जिन्होंने कभी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं करनी है। जब हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबका विकास की बात करते हैं, तो ऐसे सबका विकास में अडानी अंबानी को निकालना पड़ेगा। हमको वो देखने पड़ेंगे जो एक्सक्लूड हो रहे हैं, जिनको सुनने वाला नहीं है, दिखने वाला नहीं है, तब विकास हो पाएगा, अदरवाइज विकास नहीं हो पाएगा। तो उसने जब मेरे को कई बातें बताई उनके ऑब्जर्वेशन से और इंटरव्यू से, कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जिन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है अपने बच्चों की केयर के लिए। उसके अंदर ह्यूमन वैल्यू कहाँ से आ गई? देखिए, क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज आ गया है। तो काम तो उसने इतना करना है कि भी डिसेबल्ड बच्चे की क्या है, लेकिन उसके अंदर पूरी दुनिया है अपने आप में, एक वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड को पहचानना। वो क्वालिटेटिव डोमेन में चली जाती है रिसर्च, लेकिन वो उसने क्वांटिटेटिव करा है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हिज रिसर्च प्लान। कंस्ट्रेंट क्या है कि उसका फोकस क्या था, वो एथिक्स एथिकल वैल्यू ढूंढ रहा है कहाँ पे? केयर सिस्टम के अंदर, कि हाउ आवर हेल्थ सिस्टम, हाउ आवर वेलफेयर सिस्टम is responding to the needs of the disabled people, especially growing up disabled, including girl child। ये इतना बड़ा सवाल है। तो गर्ल चाइल्ड की मैंने जो एक हल्की सी बात करी, उसके अंदर इतनी कहानी छिपी हुई है, और फिलोसफी में क्वेश्चन ऑफ एथिक्स ढूंढ रहा है कि नहीं है? तो वो जो काम कर रहा है, तो ऐसे काम का हमारे को जो इंसाइट मिल रही है, उसको भी कुछ शब्द लिखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि वो शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है उस लड़की की कहानी बताने के लिए। वो शब्द उसको कहाँ से मिलेंगे? वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारे को हेल्प करता है वो शब्द ढूंढने में। मेरी वोकैबुलरी कहाँ से बन के आ रही? जब पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ूंगा, मैगजीन पढ़ूंगा, बुक पढ़ूंगा, और जब मैं कोई रिसर्च पेपर पढ़ूंगा, तो मेरी वोकैबुलरी में बहुत शब्द ऐसे आएंगे जो मेरे रिसर्च करने के प्रोसेस को आसान कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए भी, समझने के लिए भी, एनालिसिस के लिए भी। तो उसका जो एक पार्ट में ये आ गया, तो फाइंडिंग कंक्लूजन का जो दूसरा पार्ट है, वो इंटरप्रेट स्टैटिस्टिकल टर्म्स कॉमन इन ईच टाइप ऑफ रिपोर्ट। अब जो स्टैटिस्टिक्स है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारी सैंपल स्टडी होती हैं। तो सैंपल है तो वो स्टैटिस्टिक्स है, पॉपुलेशन है तो पैरामीटर है। तो हम सभी पॉपुलेशन को बिहेवियर स्टडी में स्टडी नहीं कर सकते, तो हम सैंपल भी जाते हैं। तो सैम्पलिंग कैसे करनी, ये अपने आप में एक इशू है, उसको हम टच नहीं करेंगे, और वो पेपर में कहीं हल्की बात आ जाएगी। तो उसके अंदर हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है, वो क्या, मीन है, मीडियन है, फिर मोड है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन है, विचलन है, विचलन बोलते हैं उसको, डिस्पर्शन है, और फिर नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स कहाँ से आते हैं? सोसाइटी के अंदर, जो आईक्यू में डेवलपमेंट स्टेज में आज से 70-80 साल पहले बन के आ गए थे आईक्यू। फिर 4 साल के बच्चे का आईक्यू कितना है? 100। तो हम कहते हैं ये मेंटली रिटार्डेड है, मोरोन है, जब कहते हैं ब्रिलियंट है, जब कहते हैं ये जीनियस है, कहाँ जब कब कहते हैं नॉर्मल है। और अभी हम जितने लोग बैठे हुए हैं इस वेबिनार में, हम सबका इंटेलिजेंस लेवल अबव एवरेज है। को जो एवरेज वाला वो स्कूल पास आउट करता है लेकिन आगे नहीं चल पाता है, जो बिलो एवरेज वो चले नहीं पाएगा स्कूल में, क्योंकि सक्सेस के लिए आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का होना जरूरी है। तो उसके नॉर्म ढूंढते हैं हम अबव नॉर्मल हैं। जो बिलो नॉर्मल है वो कौन है, आइडेंटिफाई करते हैं हम। तो नॉर्म्स हैं। फिर हमारे पास उसके अंदर परसेंटाइल जो हैं, वो अगेन एक टर्म जो यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड स्कोर के अंदर। परसेंटाइल की स्कोर करते हैं, जेड स्कोर करते हैं। तो एक स्टैटिस्टिक्स को ग्रुप कंपैरिजन में क्या करते हैं? काई स्क्वायर, द मोस्ट पॉपुलर मेथड काई स्क्वायर। और फिर डिफरेंस बिटवीन मीन टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है। हम यूजली कहते हैं 0.05 लेवल, 0.01 लेवल। वो पेपर में लिखा मिलता है ये टर्म,
एक पेपर देखेंगे उसने ठीक लिखा है गलत लिखा है, पूछा जाएगा आप लोगों को एक पेपर में, पहला ही पेपर है। कौन सा, जिसकी ड्यूटी है उसको कहना ध्यान से देखे, जो आपका इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ वाला पेपर है, फुल ऑफ एरर्स। हम कहते हैं एरर फ्री, तो फ्री नहीं, जहाँ पे फुल ऑफ एरर्स, वो ढूंढेंगे उसके अंदर क्या कहाँ एरर है। तो लास्टली रिलेशनशिप पे हमने बात अभी कर ली थी। कोरिलेशन है, कोरिलेशन को कब सिग्निफिकेंट कहना है और कैसे कहना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तुझे इंट्रिकेसी से कौन बता रहा है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताएगा। पेपर पढ़ेगा, जब पेपर पढ़ रहे होंगे तो इसके अंदर इतनी बातें आएंगी। तो फिर क्या है कि किस तरीके की उसकी समरी बनाई गई है, उसके हम नोट्स बनाते हैं 5 6 7 8। और फिर क्या करते हैं हम उसको बिब्लियोग्राफिक साइटेशन बनाते हैं उसकी, और साथ में उसको टॉपिक एंड उसकी समरी का एक पार्ट बना लेते हैं। साइटेशन कैसे करना है, हम एपी स्टाइल को फॉलो करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, आप साइकोलॉजी वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे, बताइए एआई चाहिए कि आई चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए? एआई तो टेक्नोलॉजी वाले ने दे दिया है, हम तो टेक्नोलॉजी वाले नहीं थे, हम तो सामाजिक प्राणी हैं। हमको सोशल इंटेलिजेंस चाहिए, हमारे को इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, हमारे को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए, जहाँ हमारे को विवेक चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा डोमेन नहीं है। वो स्पेस रिसर्च का हो सकता है, मेडिकल रिसर्च का हो सकता है, ओशनोग्राफी का हो सकता है, चंद्रमा पे जाना है, सूर्य पे जाना है, मंगल पे जाना है, कहीं किसी ग्रह पे जाना है, तो उसकी रिसर्च है, वहां पे आपका एआई काम करेगा। ह्यूमन लाइफ को समझने के लिए एआई काम नहीं करेगा, ये आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन और एक दूसरे से संवाद ही कर पाएगा। और संवाद करने के लिए जो हमारे पास टूल ऑफ रिसर्च है वो इंटरव्यू है। जब इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा होता है तो ऑब्जर्वेशन भी चल रही होती है, और इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन आर टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। नायक फिल्म याद है ना, नायक फिल्म अनिल कपूर की, जब वो सीएम को करता है तो एक दिन कुर्सी देता है ना सीएम, उसको बन के दिखा, कहता मेरा काम नहीं आपका काम है, मेरा काम क्वेश्चन पूछना है। तो रिसर्च, जो जर्नलिस्ट है वो एक बहुत बड़ा रिसर्चर है, जो सीएम को क्वेश्चन पूछने वो गया था उसके आंसर उसको पहले से पते थे। जब हम रिसर्च करने निकलते हैं हमारे को आंसर पहले से पता होता है। रिमेंबर दिस थिंग। रिसर्चर को उस लेवल पे लेके जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि उसके पास प्लॉजिबल आंसर होगा उसके पास। जब वो डाटा एनालिसिस से एनकाउंटर करेगा तो वो उसके अंदर उसको सीमाएं उसको पहले पता होंगी, इसके अंदर ये बातें पॉसिबिलिटी है। वो कौन उसकी जो स्किल है, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बिल्ड करता है रिसर्चर के अंदर। अगर हम अच्छे तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं और एक अच्छा रिसर्च पेपर, एक अच्छा, आई क्वालिफाई द वर्ड, अच्छा विशेषण लगा रहा हूँ, एक अच्छा रिसर्च पेपर, एक अच्छा रिसर्च पेपर एक रिसर्च की कंप्लीट जर्नी है। अगर मैंने वो जर्नी कर ली, फिर मैंने एक और अच्छे रिसर्च पेपर की जर्नी कर ली, अगर मैं 2 या 3 रिसर्च पेपर की जर्नी कर ली तो मेरे को रिसर्च करनी आ जाएगी बिफोर डूइंग रिसर्च। जी, इस बात को याद रखिए कि आपका जो एक रिसर्च पेपर को पढ़ना है, उसको समझना है, पहले अक्षर से लेके आखिरी अक्षर तक नॉवल की तरह पढ़ना है पहले, फिर उसको री रीड करना है, फिर उसमें से जो पॉइंट्स है जहाँ टिक लगाने हैं, जहाँ पे आपको मुश्किलात आई है, शब्द मुश्किल आए हैं, अननोन वर्ड्स होंगे आपके लिए, अननोन वर्ड का मीनिंग देखना, तो मीनिंग देखने के लिए क्या होएगा, आपके पास डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी देखेंगे, उनका हम लिखेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे। अगर आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर अंग्रेजी में मिल रहा है, आपको अंग्रेजी कम आती है, विद्यार्थी कहता मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, ना है कोई बात नहीं, पढ़ लो, तो उसके अनुवाद कर लो, 5 या 6 स्टेटमेंट उसकी अंग्रेजी हिंदी की बाइलिंगुअल सिस्टम में आकर उसका अनुवाद कर लो, लिख लो, तो उसे समझना, हम तो समझना है कि करा क्या हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसकी अंग्रेजी ठीक है उसको हिंदी का कोई आर्टिकल मिल जाता है, हिंदी अखबार पढ़ता हूँ, मेरी हिंदी सख्त नहीं है, मैं बोल देता हूँ,
लिखने में मेरे को परेशानी आती है। पंजाबी में लिख भी लेता हूँ, बोल लेता हूँ। अंग्रेजी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि ज़्यादा लिटरेचर मैंने पूरी उम्र अंग्रेजी में पढ़ा है। ये लर्निंग हुई है मेरी। मैंने अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बतानी है तो इंग्लिश में मेरी सबसे अच्छी है, पंजाबी में नंबर 2 पे हूँ। पंजाबी में लिखने में फिर भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन पंजाबी और हिंदी पढ़ने में उतना ही सक्षम हूँ। लेकिन हिंदी लिखने में मेरे को ज़्यादा मुश्किल है, पंजाबी लिखने में कम मुश्किल है, क्योंकि मेरी मदर टंग रही है। तो तमिल वाले की तमिल रहेगी, तेलुगु वाले की तेलुगु रहेगी, केरला वाले की मलयालम रहेगी, बांग्लादेश वाले की, जब जो हमारे वेस्ट बंगाल वाले उनकी बांग्ला रहेगी, तो हिंदी वालों की हिंदी रहेगी। तो अपनी भाषा में प्रवीणता को ना अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन दूसरी भाषा का आना भी ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों ने कई बार इंडियन हिस्ट्री में या एंशियंट हिस्ट्री में काम करना है, वो उन्होंने संस्कृत सीखी, क्योंकि उनको आप जो उसमें का लिटरेचर मिल रहा है संस्कृत में है। मीडिएवल में उनको पर्शियन में मिल रहा है तो पर्शियन सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं। तो किसी ने वो यूरोपियन हिस्ट्री पे काम करना है तो उसको फ्रेंच भी सीखनी पड़ेगी, स्पेनिश भी सीखना पड़ेगा, या उसको दुभाषी रखने पड़ेंगे कई लोग जो उसको समझा सकें कि इन बुक्स में क्या रखा है। जिनका तो ट्रांसलेशन हो गया आगे डॉक्यूमेंट्स का, अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ तो उनको कैसे देखना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर की कोई भी भाषा हो, हमको उससे उसको अपनी भाषा में समझना है। मैं पंजाबी वाला हूँ तो मेरे को पंजाबी में समझ आनी चाहिए, अपने दिमाग में किसने क्या कर रखा है। जो हिंदी वाला है उसको हिंदी में समझ आना चाहिए। जो हिमाचल के या कश्मीर के हमारे बीच में स्कॉलर जुड़े हुए हैं, उनको अपनी भाषा में, जो मंडी वाला मंडी की भाषा में, जो बिलासपुर वाला बिलासपुर की भाषा में, जो जम्मू वाला डोगरी में, उनको अपनी भाषा में समझ आ जाना चाहिए कि उसने कर क्या रखा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इमोशनल कॉर्ड का होना बहुत जरूरी है रिसर्च में। बिकॉज अब रिसर्च इज प्राइमरली कंसर्न विद द ह्यूमन बींग्स, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, और चाहे वो हमारे एडल्ट हैं, चाहे हमारे ओल्ड एज पीपल हैं। वी आर डीलिंग विद ह्यूमन मटेरियल, वी आर डीलिंग विद द लिविंग कंडीशन, वी आर लिविंग विद within the society, either at home or in some institution, working in the institution। हर व्यक्ति, हर स्थिति हमारे को समझने की बात है। तो एक पेपर मानने का क्लाइमेट की बात भी करिए, स्कूल क्लाइमेट है और क्लासरूम क्लाइमेट है, उधर हमारा होम एनवायरनमेंट है विद्यार्थी के लिए, जो रिसर्च हमारी चल रही है। तो ये पहली स्लाइड का काम इतना था। अब आप दूसरी पे आ जाइए। यस सर। हाँ जी, ये है सर सेकंड पेज, लिटरेचर रिव्यू। जिसमें वो है बॉक्स 1 है, गोल्स ऑफ लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू। पहला गोल क्या लिखा है, पढ़ दो आप ही। रिव्यू। सर पहला गोल है कि एक सेकेंड, हाँ, to demonstrate a familiarity with the body of knowledge and establish credibility. A review tells a reader that जो the हमने कर researcher लिया हो गया। हाँ बस बस ठीक हो गया। हेडिंग यही है ना कि हमने बात कर ली है, हो गया ना। सेकंड हेडिंग पढ़ लीजिए, टू शो parts of prior research and how a current project is linked to it. हाँ, अभी हमने इतनी बात करी थी कि भी उसने की जर्नी को हम तय कर लेंगे, एक रिसर्चर की जर्नी को तय कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने जर्नी तय करनी है, तो उसमें मैंने क्या क्या रखना है। 5, 7, 10 रिव्यू से मेरी अपनी जर्नी का रास्ता निश्चित होना शुरू हो जाता है। नंबर 3, To integrate and summarize what is known in an area. हाँ, जो कुछ हमारे को अवेलेबल लिटरेचर है उस समय का, उससे हम किस तरीके से उसको से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको इंटेग्रेट कर रहा है। हाँ, चौथा, And to learn from others and stimulate new ideas. हाँ, वहीं से हमारे पास नए आइडिया आने की शुरुआत होती है। आप लोगों ने ब्लूम का नाम तो सुना हुआ ना, प्रोफेसर ब्लूम का। उसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं 6 प्रकार के, बोलता है हायरार्किकल बोलता है। नोइंग, अंडरस्टैंडिंग है, नोइंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब रिमेम्बरिंग, मेमोरीज पे है। 3 लेवल है, पहले हम 3 लेवल पे बात करते हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। कौन कौन से है, बी रिपीटेड। रिमेम्बरिंग मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है और रिफ्लेक्शन। और जब ब्लूम ने उसको 80 में लेकर आया, ब्लूम की टैक्सोनॉमी हमको पढ़ लेनी चाहिए। NEP 2020 ने ब्लूम की टैक्सोनॉमी को यूज किया है।
पहला हमारा एजुकेशनल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है जिसमें पेडागोजी के ऊपर लिखने पढ़ने की प्रथाओं को कैसे देखना है, तो ब्लूम का उन्होंने प्रयोग किया है। तो उसमें पहले 5 थे, फिर उन्होंने 6 कर दी। 5 क्या थे? वो थे रिमेम्बरिंग, पहले वो कहता मेमोरी ही कहता था, नॉलेज, फिर कहता था अंडरस्टैंडिंग है, फिर कहता था एनालिसिस है, सिंथेसिस है, फिर कहता था इवैल्यूएशन है। हो गए 5। फिर उन्होंने कहा इवैल्यूएशन है, तो इवैल्यूएशन में उन्होंने फिर डिवीजन कर दिया। इवैल्यूएशन तो है ही, क्रिएटिंग। तो पहले वो नाउन में बोल रहा था, बाद में उससे टीम ने रिवाइज किया इसको, रिवाइज करके उन्होंने फिर आईएनजी लगाया, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो रिसर्च ने उस क्रिएटिंग तक जाना है। ये स्टेजेस हैं, पहले याद भी करना पड़ेगा, फिर उसको उसका विश्लेषण भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, फिर हमने निर्माण करना है, ज्ञान का निर्माण करना है। तो ये जो प्रोसेस है रिव्यू का, ये गोल्स उसने बड़े स्पष्ट रूप में लिखे हैं। इस बुक का टाइटल आप लोगों के पास मैंने भेज दिया है, न्यूमैन का बुक है ये, उसमें से मैंने पेज लिया है। अब तीसरी स्लाइड पे आ जाइए। Yes, sir. हेडिंग क्या है इसका? Types of literature review. सिक्स टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। Literature review. पहला रिव्यू कौन सा है? पहली टाइप, Context review. हाँ, कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में करी गई है। टाइटल में आपको मिलेगा पंजाब में करी है, हरियाणा में करी है, यूपी में करी है, कहीं सिटी का नाम आ जाएगा, कहीं पे कंट्री का नाम आता है। तो वो ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर वो कहाँ करी जाती है। तो ये आप हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसी के अंदर फिर किस पॉपुलेशन को किया गया है। स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। मैंने एक पेपर जो शेयर किया है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। वो उसने यूनिवर्सिटी शब्द नहीं कहा है, पोस्ट ग्रेजुएट कहा है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कौन है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कौन है, दोनों की परिभाषा डिफरेंट है। परिभाषा जब हम ऑपरेशनल डेफिनेशन में जाते हैं, तो कॉन्टेक्चुअलिटी हमारे को रिसर्च पेपर के अंदर हम कई बार कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ पे करा गया है, वहीं से फिर करते करते मैं अपनी जर्नी पे आना होता है। सेकंड पार्ट टाइप Historical हिस्टोरिकल, review. वो हिस्टोरिकल रहेगा ये रिव्यू हमेशा ही। हाँ, आप लोगों के बताया गया होगा, स्कॉलर से क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि आपको जब आपके टीचर साहबान ने कहोगे हमने कितने साल पुराना लिटरेचर देखना है, 20 साल, 25 साल, 10 साल, 30 साल, 35 साल, हिस्ट्री है। विदाउट नोइंग द हिस्ट्री वी कैन नॉट लुक एट प्रेजेंट एंड मेक प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर। तो हिस्टोरिकल रिव्यू है कहाँ तीसरा। तीसरा integrative review. हाँ, तो वो किस तरीके से उन्होंने 2 या 3 या 4 वेरिएबल को या 2-4 सिचुएशन को किस तरीके से उनकी इंटरलिंकेज को डेवलप किया है। चौथा, चौथा methodological review. जो हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है, 5 स्टेप तो रिसर्च के याद है ना। अगर मैं रिव्यू करता हूँ, पहला स्टेप हम साइंटिफिक मेथड जब कहते हैं, पहला स्टेप कौन सा है? सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर है दूसरा, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग है। तो तीसरा कौन है? डाटा कलेक्शन। क्योंकि हमने एक सैंपल चाहिए हमारे को, जिस पॉपुलेशन काम कर रहे हैं उसका से सैंपल आएगा, और एक हमारे को जो मेजर करने जा रहे हैं वो हमारे पास टूल ऑफ रिसर्च आएगा। इंटेलिजेंस देखना है, मोटिवेशन देखना है, अचीवमेंट देखनी है, उनका एंजाइटी लेवल देखना है। या डॉक्टर के पास किट में होने चाहिए ना इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर भी होएगा, स्टेथो, क्या बोलते हैं, स्टेथो, हाँ, होता है ना कुछ स्टेथो वो जो, Stethoscope. हाँ, स्टेथोस्कोप। और फिर उसका वो भी होता है, क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर देखने का, है ना, कई कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है ना। तो वो ऐसे ही हमारे भी टूल्स ऑफ रिसर्च हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट फैसेट्स को देखते हैं। तो टूल्स ऑफ रिसर्च चाहिए, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, और किस पे करना है उसके लिए हमारे पास हम पॉपुलेशन से सैंपल आना है। तो थर्ड स्टेप हो गया। चौथा कौन सा है? एनालिसिस ऑफ डाटा। Self study review. हाँ, Self study review. हाँ, ठीक हो गया। हाँ, फिर आ गया सेल्फ स्टडी रिव्यू।
पढ़ने की बात है, जो अभी हम कह रहे हैं कि नॉवल की तरह पढ़े, हम एक बार ऐसे के पढ़ते कई बार लिटरेचर को। फिर आ गया लास्टली Then theoretical review. थ्योरेटिकल। यस, पहले पन्ने पे जो हमने हटा दिया एक शब्द आया हुआ पर मेटा एनालिसिस। हाँ सर, ये है। हाँ, बस है ना। हाँ। तो गो बियॉन्ड एनालिसिस, थ्योरेटिकल। मेटा रिव्यू भी कहते हैं हम, तीन टर्म का ऊपर जो करते हैं। मेटा रिव्यू, कई बार हम बिब्लियोग्राफिक रिव्यू भी कह देते हैं, और ये थ्योरेटिकल है, जो पूरा कॉन्सेप्चुअली हम देखते हैं। जब हम किसी वेरिएबल की डेवलपमेंट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंटेलिजेंस को देखना है आज की डेट में, तो हमारे पास इंटेलिजेंस देखने के कितने मुकाम हैं। पहले तो हम यही कह रहे हैं एआई इंटेलिजेंस नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। हाँ। हो गया ना कोई बात, वो तो टेक्नोलॉजी, टीचिंग एड है, एक टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो चैट जीपीटी भी आ गया हमारे को, अभी कुछ बता दे, कुछ भी पूछ लो उसको, कहता है मैं कुछ भी आंसर दे दूंगी, भगवान है वो। या निर्मल बाबा है। एआई निर्मल बाबा कुछ ही बता देगा वो है। तो हाँ, इंटेलिजेंस में क्या है, जैसे थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार की कही थी। कौन कौन सी इंटेलिजेंस थी थॉर्नडाइक की? पहली कंक्रीट इंटेलिजेंस कहा, एब्स्ट्रैक्ट कहा, और सोशल कहा। फिर वर्णन आता है, उसने फिर एक हायरार्की दी वर्णन ने। फिर हमारे पास जेपी गिलफर्ड आ जाते हैं, उन्होंने एसवाई मॉडल दे दिया। उसी बात क्रिएटिविटी भी आ गई। एसवाई मॉडल में थ्री डायमेंशनल मॉडल दिया उस टाइम जेपी गिलफर्ड ने, और जेपी गिलफर्ड ने थ्री डायमेंशनल मॉडल दिया तो पहले 4x5x6 कहा, फिर 5x5x6 कहा, फिर 6x5x6 कहा। 120 का एबिलिटी का भी मैथमेटिकल मॉडल है, 150 का है, 180 का भी है। लेकिन वो सभी एबिलिटी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके, क्योंकि और फिर सर्च चल पड़ी, तो उन्होंने फिर इंटेलिजेंस को उस तरीके से देखना छोड़ दिया जो जेपी गिलफर्ड ने मैथमेटिकली हमारे को समझाने की कोशिश की थी, मॉडल दिया था, जो भी है हमारे पास। फिर हमारे पास गार्डनर साहब आ जाते हैं, जब कहता भी 8 प्रकार की इंटेलिजेंसेज हैं, फिर उसने खुद ही 9 कर दी। फिर स्टर्नबर्ग आ गया, वो ट्राइआर्किक मॉडल की बात करता है। तो इंटेलिजेंस की थ्योरी में लगातार एक तो ये बढ़ोतरी हुई है, और एक तरफ हमने कहा कि जो सोशल इंटेलिजेंस को हम भूल गए थे, थॉर्नडाइक के समय कहा हुआ शायद हमने छोड़ दिया था, सोशल इंटेलिजेंस को छोड़ दिया था हमने। हमने फिर क्या पकड़ा, अब सोशल इंटेलिजेंस भी है, गोल्डमैन जी आ गए, गोल्डमैन जी ने कह दिया इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो कई लोगों ने ये कहा जहाँ इमोशन आ गई वहाँ इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकती। ये डिबेट अभी भी चल रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन इस पर रिसर्च हो रहा है। फिर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी आ गया। अभी कुछ दिन पहले कोई बात कर रहा था, हमारे को कहते एथिकल इंटेलिजेंस भी देखनी चाहिए। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में तो रिलीजन नजर आना शुरू हो जाता है ना थोड़ा सा, और एथिकल में रिलीजन नजर नहीं आएगा। रिलीजियोसिटी में और स्पिरिचुअलिटी में कई बार हम एक साथ दिखना शुरू करते हैं, कई बार रिलीजन और फिलोसफी को भी एक जैसा दिखना शुरू करते हैं। फिलोसफी और चीज है, रिलीजन का होना और। डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन कुछ और काम करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी कुछ और काम करता है। तो इतना हमारे को जो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आपका कौन सा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये आपका थ्योरेटिकल है। ओके सर। पर्सनैलिटी में आ जाइए, सिस्टम पीएफ आया, फिर आईजेंक का 2 डायमेंशनल मॉडल आया, फिर आईजेंक का 4 डायमेंशनल हो गया, फिर बिग 5 मॉडल आ गया। बाकी वो वेरिएबल को छोड़ दो आप, बाकी लोकस ऑफ कंट्रोल, एंजाइटी, एंगर, वेलबींग, वो पर्सनैलिटी का और स्टडीज हैं वो। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, फिर आईजेंक का मॉडल है, फिर उसके बाद मॉडल किसका है, बिग 5 मॉडल है, जो पर्सनैलिटी व्यक्ति को कुछ गुणों में देखते हैं। वो एडिशनल बातें हैं, मोटिवेशन का एंगल है, एंजाइटी का एंगल है, वो जो साइकोलॉजिकल कैपिटल कहने लग गए हैं वो अलग से आ गया है, जिसमें होप, सेल्फ एफिकेसी बंदूरा साहब की वो आगे शुरू हो गया ना। जब हम किसी वेरिएबल पे या इशू पे काम कर रहे हैं, तो जब हम उसकी कॉन्नोटेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा काम होके क्या कहा गया है, वो कौन सा लिटरेचर, थ्योरेटिकल। तो एक रिसर्चर इनमें से 2 या 3 प्रकार का रिव्यू अपना पिकअप करता है। और एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, जब हम अभी एक्सरसाइज में जाएंगे तो उसके एब्स्ट्रैक्ट को भी देखेंगे, टाइटल को भी देखेंगे, फिर उसके अंदर हम थोड़ी सी एक झलक लेंगे
कि क्या कर रखे लोगों ने, क्या कर रखा है, सच ने क्या कर रखा है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए अब हमारे स्कॉलर जिस प्रकार के बैठे हुए बात सुन रहे हैं, उनके लिए ये है कि उसको इनिशियली जब उसने सर्च प्रोसेस शुरू करना है, तो एक रिव्यू पेपर में जो एम्पिरिकल है, एम्पिरिकल कह रहा हूँ मैं, एम्पिरिकल पेपर का मतलब समझ रहे हैं आई थिंक, जिसमें कोई टूल लगाकर डाटा कलेक्ट करके उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया है। तो उस पेपर को से जब हम उसको रिव्यू कर रहे होते हैं, तो उसमें से जितने नोट्स हम बनाएंगे वो हमारे पहले चैप्टर से लेकर आखिरी यूनिट तक हमारे को हेल्प कर रहा होगा। तो हम वहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये स्टेटमेंट मेरी इंट्रोडक्शन में जा सकती है, ये मेरे टूल के लिए हो सकता है, ये सैंपल का हो सकता है, ये एनालिसिस का कौन सा कैसा कर रखा है, ये उसने फाइंडिंग कैसे बनाई हुई है, ये उसने सिग्निफिकेंस कैसे देखी है, इन्फर कैसे किया है, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे किया है, हाइपोथेसिस की लैंग्वेज क्या लिखी गई है। इतनी बातें वो उस पेपर में मार्क कर लेगा अगर, तो उसका पूरा रिसर्च का थीसिस बनना शुरू हो जाएगा। और जो अच्छे पेपर हैं, फिर मैं कह रहा हूँ, अच्छे पेपर में एंड में हमेशा लिमिटेशन लिखी होती है, डिलिमिटेशन भी लिखी होती है, फ्यूचर गैप भी दिया होता है। तो वो हमने जो रिसर्च अभी शुरू नहीं की है, रिसर्च करने के बाद हमने सजेशन ऑफ फर्दर रिसर्च लिखना होता है, जो वो भी हमारे को अभी मिलना शुरू हो जाता है। मैंने जो करना है वो मेरा गोल बन गया है, जो मैं नहीं कर पाऊंगा वो मेरा किस में जाएगा, सजेशन ऑफ फर्दर रिसर्च में जाएगा। तो एक अच्छा रिव्यू अगर एक स्कॉलर करता है किसी भी लेवल पे, तो उसके थीसिस की राइटिंग भी शुरू हो जाती है। रिमेंबर दिस थिंग। कई बार कहते हैं कि मेरा सिनॉप्सिस या वक्त पर मैं कब पढ़ लूंगा ना, सिनॉप्सिस से पहले पढ़ना है। सिनॉप्सिस आपका बन गया, आपका थीसिस भी बन के आ गया। तो रिमेंबर दिस थिंग। तो एट दिस स्टेज मैं अभी अपने आप को स्टॉप कर रहा हूँ। अभी कोई क्वेश्चन आंसर है, आप उसको हैंडल कर लीजिए, फिर हम दूसरी एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं। श्योर सर, थैंक यू सो हाँ मच। आपने बहुत ही सिंपली सारी चीज़ें समझा दी, और बिकॉज मैं खुद एक बिगनर हूँ, सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एवरी टाइम आई ओपन रिसर्च पेपर, बट बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं। सो हाँ, अब एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको। आपने कहा लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, कितनी? सॉरी लॉट सर। किसको करें? आपने कहा लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। सर एक तो प्रॉब्लम यही शुरू हो जाती है कि लैंग्वेज, बिकॉज अभी करेंटली आई एम इन बैचलर्स, सो ओके। क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ी थोड़ी, बट क्वालिटेटिव रिसर्च में जब हम मेथडोलॉजीज यूज करते हैं, तो मुझे उस रिसर्च की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और लैंग्वेज भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, सो उसके लिए। कॉम्प्लिकेटेड, जो कॉम्प्लिकेटेड लगती है उसका सोल्यूशन तो दे दिया आपको हाँ सर। आगे न के, जो शब्द मुश्किल है उसका डिक्शनरी से मीनिंग लो। यस सर। डिक्शनरी आपका दो होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। कौन कौन सी? एक तो हिंदी अंग्रेजी की, अंग्रेजी हिंदी की डिक्शनरी होगी आपके पास, यस एक सर। डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी होगी। ठीक। ओके सर। हाँ हाँ, सभी के पास दो दो डिक्शनरी होनी चाहिए। जैसे मेरे पास अंग्रेजी पंजाबी की भी है, पंजाबी अंग्रेजी की भी है। पंजाबी शब्दों से अंग्रेजी शब्द कहाँ से मिलेगा मेरे को? हाँ। हो गया ना। आपके पास हिंदी के, आपकी वोकैबुलरी हिंदी में है, कई बार हमारे को शब्द नहीं मिलता है, तो शब्द कहाँ से मिलेगा? हमारे को डिक्शनरी मिलेगा। डिक्शनरी तो से। वो उसका कौन सा मीनिंग है जो कॉमन मीनिंग है, लेमैन के लिए है। तो उसका सही मीनिंग कहाँ मिलेगा? बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग जो रिसर्च के एंगल से चाहिए वो आपको मिलेगा आपके सब्जेक्ट की डिक्शनरी से। डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, हमारे पास डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन है, हमारे फिलोसफी वालों की डिक्शनरी ऑफ फिलोसफी है, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स वालों की डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एक उसको अपने सब्जेक्ट की ग्लोसरी ऑफ टर्म में जाना पड़ेगा। जितनी टर्म्स मिल रही हैं उनकी ग्लोसरी तैयार करिए, वो आपकी स्ट्रेंथ बनाएगी। और डिफिकल्टी, हाँ और दो सर, बातें। क्वालिटेटिव रिसर्च वाली बात करूंगा, तीसरा पेपर जो आ रहा है ना, तीन हाँ। पेपर हमारे पास, उसमें आपके बात का कई काफी जवाब मिलेगा। यस सर। हाँ हाँ। ठीक है। सो और बाकी सबसे क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ इफ somebody has any questions, you can either type in the chat box या आप हाँ hand raise कर सकते हैं, so one by हाँ one we'll take everybody's questions. हाँ।
हाँ, कोई है अभी या हम आगे चलें, या इस बात पे करें? Uh, does anybody have any questions as of now? तो मिस्टर शुभम कह रहे थे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उनके पास। हाँ सर। हाँ सर, हाँ तो कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग को गूगल फॉर्म पे मिले थे, हाँ वो हाँ हाँ सर जैसे कि किसी ने पूछा था कि जो की एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जैसे कि जब हम पहली बार रिसर्च पेपर पढ़े, सो व्हाट आर द फर्स्ट की एलिमेंट्स दैट वी शुड फोकस ऑन, ताकि हम असेस कर पाए कि वो रिसर्च पेपर हमारी रिसर्च के लिए क्रेडिबल है या उसकी क्वालिटी है कि नहीं है, और क्या रेड फ्लैग्स होते हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती है कि उसको देख के हमें समझ जाना चाहिए कि ये रिसर्च हाँ। पढ़ के टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है। वेस्ट वाला काम कभी काम नहीं आए, बात नहीं आएगी, ये शब्द को निकाल दो डिक्शनरी से। हर एक पेपर आपको कोई ना कोई इंसाइट देगा। ठीक करा हो तो आपको बिल्कुल सही इंसाइट देगा, अगर कहीं उसने गलती करी होगी फॉर एनी रीजन, गलती हो जाती है, गलती भूल चूक से भी जाती है, इंटेंशनल नहीं होती है, और वो समझ नहीं होती उस बात की, कई बार गलती हो जाती है, तो उसको हमने अगर कैच कर लिया है, वो हमारे लिए लर्निंग हो जाएगी। ठीक, दो शब्द रिसर्चर ने कोई किताब पढ़ ली ना, अगर उसके कहीं काम नहीं आई तो वेस्ट तो नहीं हुई ना, आपकी नॉलेज में तो इजाफा हुआ है ना, देयर इज इंक्रीमेंट इन योर नॉलेज। यस सर। हाँ सो सर, हाउ विल वी डिसाइड कि ये रिसर्च साइट करने लायक है कि नहीं है? जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसे हाँ आपने भी बोला कि जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाला पेपर था उसमें बहुत सारे एरर्स हैं। अब अगर कोई उसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे रिसर्च करता है, तो क्या हमें उस पेपर को साइट करना चाहिए अपने रेफरेंसेस में? यस यस करेंगे। हाँ, ये कैसे करेंगे, वो उसके हम शब्द बदल देंगे, जो ओके। एनालिसिस में लिख रखा है उसको हम करेक्ट कर देंगे। ओके। हाँ, जो डाटा उसने दे रखा है, उस डाटा में आपको एक दो बातें दिखाऊंगा, जो मेरे साथ उसको पेपर को शेयर कर रहे होंगे ना, मेरे पास हार्ड कॉपी है, वो जो शेयर कर रहे होंगे ना, हमारे हाँ। ऑलमोस्ट सभी स्कॉलर के पास आपने सर्कुलेट कर दिया है। हाँ जो सर। जो मैंने कुछ स्कॉलर जो मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी उसके अंदर टाइटल आ गया है। हाँ। तो उनको भी मैं शेयर करने लेके आऊंगा, ठीक है ना? हाँ। हाँ, ठीक है ठीक है सर। ना? और सर एक और क्वेश्चन आया था कि जब हम लोग डिस्कशंस वाले और रिजल्ट्स और डिस्कशंस हाँ, जब हम लोग पढ़ते हैं, तो एज अ बिगिनर कि हमें क्या क्वेश्चंस खुद से पूछने चाहिए या कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि जो उनका इंटरप्रिटेशन है वो सही है या उसमें कुछ गैप्स हैं कि नहीं है? ओके। हाँ, ये जब पेपर कर रहे हो तो हो जाएगा, उसमें हो जाएगा डिस्कस के बाद का, ठीक है। हाँ, तो तीसरा फिर सर, क्वेश्चन। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सर नेक्स्ट अब रिसर्च पेपर हाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, ये दोनों बातों को थोड़ा ब्रीफली मैं आपको शेयर कर दूं। हाँ। जैसे हमने आपका डोमेन साइकोलॉजी है, ठीक है ना? हमारे कुछ कॉलेज जो पीएचडी एजुकेशन में कर रहे हैं, वो एजुकेशन साइकोलॉजी उनके पास, उनका मेनली डोमेन कईयों का क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी है। जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं तो दिस मीन्स वी आर ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स with regard to students either of school or of college or of university। तीन प्रकार के स्टूडेंट है ना हमारे पास। यस सर। साइकोलॉजी वाले के पास स्टूडेंट ऐसा नहीं आएगा, वहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी का एक डोमेन है, वो मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट्स की ओर चले जाएंगे आगे ना वो। कोई हाँ। ऑटिज्म में चला जाएगा है, कोई हैंडीकैप्ड बच्चों पे चले जाएगा आगे ना, उनके उनके डोमेन खुलते जाते हैं। लेकिन हमारा दायरा क्या है, हमारा दायरा ज़्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहता है एजुकेशन साइकोलॉजी में। जो साइकोलॉजिकल दायरा है वो बहुत विशाल होता है, ज़्यादा विशाल होता है, तो उसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार का भी है तो वो आपके लिए फोकस ऑफ रिसर्च हो सकता है। जब आपने आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये आपका आपको जब गाइड बता रहा है, जब आपके पास आपके जो डिपार्टमेंट की या इंस्टीट्यूशन की कुछ प्रायोरिटी होती हैं कि हमने किस पे रिसर्च करनी करानी है, तो आपको एक दे दिया। हम जो पहले कहते हैं लाइब्रेरी जाओ, लिटरेचर देख कर आओ या थीसिस देख के आओ, ये दो बातें बोलते हैं। तो आपका मन में अगर पहले ही बना होगा कि मैंने हायर एजुकेशन के स्टूडेंट देखने हैं, मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स देखने हैं, या मैंने
हेल्थ साइकोलॉजी में एग्रेसिव बिहेवियर देखना है या मैंने डेलिक्वेंट चाइल्ड को देखना है, किसको देखना है, तो वो आपका पहला एंगल तो आ गया पॉपुलेशन कौन सी है जिसको आप फोकस करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से लिटरेचर आप ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक हो गया एक इशू, पॉपुलेशन कौन सी लेनी है। दूसरा इशू है कि हमने क्या काम करना चाहते हैं, कॉग्निशन में काम करना है या उसने पर्सनैलिटी में काम करना है, उसने नॉर्मल व्यक्ति में काम करना है या उसने जो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन उन पे काम करना है, तो दूसरा एरिया उसका वहां पे निकल के आ जाएगा। हो गया ना, दो इशू लेकर चलते हैं, एक वेरिएबल को फोकस करते हुए, एक पॉपुलेशन को फोकस करते हुए, तब हम अपना रिव्यू का यात्रा शुरू करते हैं। और जो पहले एक दो पेपर मिलते हैं वो हमारे को थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट बोथ द थिंग्स, वेरिएबल्स और पॉपुलेशन के बारे में कुछ हमारे को नए शब्द मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हमारे को उस पेपर के अंदर एक रिसर्च पेपर आप उठाएंगे, अभी हम जब पहला पेपर उठाएंगे, पहले सबसे पहले मैं उसकी बिब्लियोग्राफी में जाऊंगा, उसने कितने रेफरेंस को कोट कर रखा है, आगे ना, तो उनमें से कुछ एक मेरे हो सकता है मेरे को ज़्यादा उसमें 4 या 5 मेरे काम भी आने वाले हों, तो वहाँ से मेरी बैक जर्नी शुरू हो जाती है लिटरेचर की, कि कोई 1980 का है, कोई 1990 का है, कोई 2005 का है, 2007 का है। फिर मैं उनको उनमें से एक पेपर ढूंढ लिया, उसको पढ़ने बैठा तो उसकी बिब्लियोग्राफी देखी तो मेरे को 4 रेफरेंस और मिल गए पुराने, तो उससे मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द दैट पार्टिकुलर फील्ड, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। कहीं इसमें वेस्ट कोई आपने बाद में उसको रखे ना रखे वो नहीं होएगा, पहले आपके पास एक जर्नी में 8-10 पेपर ऐसे आएंगे जो आपको एक रास्ता बनाने में हेल्प करेंगे इंटेलेक्चुअली, तो आपकी वोकैबुलरी रजिस्टर होनी शुरू हो जाएगी, आपको टूल का पता लगने लग जाएगा कि कौन से टूल यूज किए जा रहे हैं, फिर सैंपल कितना लिया हुआ है, सैंपल साइज की बात आनी शुरू हो जाएगी, फिर एनालिटिकल टेक्निक्स में क्या कर रखा है वो आपके शब्द आना शुरू हो जाएंगे। फिर जब हम उसको उसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस सेकंड राउंड में जाके करेंगे, तो फिर उसकी टेक्निकल स्किल्स में जा देखें, पहले हम अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करेंगे विद रिगार्ड टू द पॉपुलेशन ऑन होम वी आर डूइंग द रिसर्च, और दूसरा हम क्या कर रहे होंगे, वी विल बी डूइंग कि हमने किस वेरिएबल पे काम करना है और कैसे कैसे काम कर रखा है दूसरे स्कॉलर ने, क्योंकि मेरी जर्नी उनसे अलग से नहीं होगी, उनकी जर्नी के साथ साथ मेरी जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। ये इसके अंदर पार्ट है। एक आपने शब्द कहा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तब हमारे पास सीधे ही वेरिएबल्स हैं, ये तो क्लियर हो गया ना हमारे को, वेरिएबल है तो इंटेलिजेंस है तो उसकी मेजरमेंट का सवाल होएगा, जब हमारे पास क्या बोलते हैं मोटिवेशन है, पर्सनालिटी है, तो उसकी मेजरमेंट का सवाल होएगा, तो वो टूल स्टैंडर्डाइज हैं ऑलरेडी। अगर वो टूल स्टैंडर्डाइज नहीं है तो हम उसको अपने कल्चर के हिसाब से, जब हमने कॉन्टेक्चुअल रिव्यू करा तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको अडेप्ट कर लेंगे। इंग्लिश में मिल रहा है लेकिन आप जैसे आप भी कह रहे हो कि अंग्रेजी में नहीं, मेरे को थोड़ा हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो हम उस टूल को हिंदी में अनुवादित कर लेंगे और उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी इस्टेब्लिश करेंगे, ये हमारे को लीड वहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हिंदी में बना हुआ होगा तो हम उसको देखेंगे कि उसने जो हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है क्या वो सही करा गया है, उसको भी हम रिव्यू करेंगे। तो टूल के बारे में भी पता लगने लग गया और सैंपल के बारे में पता लगने लग गया, तो हम आगे चलते तो हमारे को एक और टूल मिल जाता है, तो करते करते हम अपने कुछ टूल्स का किट भी हमारी रेडी होनी शुरू हो गई है। तो वेरिएबल स्टडी है, तो वेरिएबल स्टडी में हमारे को पता है जो हमने अभी टेक्निक्स का जिक्र किया कि या तो हमारे पास डाटा कौन सा होएगा इंटरवल स्केल पे जिसमें स्कोर आएंगे, अचीवमेंट का स्कोर है, आपका इंटेलिजेंस का स्कोर है, मोटिवेशन का, तो वहाँ पे मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डिवीजन आएगी, उसके बेस पे हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। सेकेंडली अगर हमारे पास कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में जाना है तो टी टेस्ट या कोरिलेशन में चले गए, जहाँ फर्दर एनालिसिस की टेक्निक्स हैं, एक पेपर में हमने वो भी थोड़ा रखा हुआ है एंगल मल्टीवेरिएट एनालिसिस का। तो वो शब्द आपके पास जब आने शुरू हो गए हैं तो हमारे पास वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक एक्सपर्टाइज बननी शुरू हो गई है। ठीक हो गया ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च डाटा इंटरवल स्केल के ऊपर है और इंटरवल स्केल पे डाटा है तो आपके पास किस की टेक्निक्स हैं वो जिनको हम पैरामीट्रिक टेक्निक्स कहते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स कहते हैं। धीरे धीरे वो सारे शब्द आपकी वोकैबुलरी में आने शुरू हो जाएंगे।
होगी एक बात, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक कहानी है। Yes, sir. अ, दूसरा जो क्वालिटेटिव में है, क्वालिटेटिव में हम कहते हैं एक वर्ड मैंने यूज किया, फिनोमोलॉजी। हमने जैसे अभी कुंभ का मेला चल रहा है, जो कुंभ के मेले में गया है, जब घर में आके कहानी बताएगा वो फिनोमिनल रिसर्च है। कहानी बताएगा, नरेटिव बताएगा, उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को छोड़कर जो ट्रेजेडी हो गई, ठीक है ना, उसका जाना, पहुंचना, रुकना, रुक के वहां पे स्नान करना, कुछ आपने वहां से परचेज करी है, कुछ लिया है, कितने लोगों को मिले हैं, वो सारा कुछ जो है उसके अंदर। जब वो वापस मुड़ के आएगा तो जो उसके शब्द हैं वो शब्द कम होंगे, फीलिंग ज्यादा होंगी। शब्द जब हम कहते हैं, शब्द का मतलब है उसका कॉग्निशन लेवल कम होएगा, लेकिन जो उसको देखा है वो कॉग्निटिवली देखा है उसने, परसेप्चुअल एबिलिटी है, कितने लोगों को मिला, क्या क्या देखा उसने, सूर्यास्त भी देखा, सूर्य उदय भी देखा, दिन में भी देखा, पानी को देखा, लोगों को देखा, खाना खाया, कहाँ पे खाया, कितना कुछ है, वो फिनोमोलॉजी है। जब वो आके बताएगा, कहता, जब कहता ना आनंद आ गया, बहुत आनंद आया, तो ये जो फीलिंग है, ये उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करते हैं, सेंस। कुंभ का मेला है, अभी बसंत पंचमी हो गई होती है, गणतंत्र दिवस आया है हमारा, जब हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं, वुमेन डे सेलिब्रेट करेंगे अभी 8 मार्च को करेंगे ना, वुमेन डे का 8 मार्च को है। तो वो जो सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, जो उसका ऑब्जर्व करना, उसको देखना, उसके बारे में रिसर्च करना, वो फिनोमोलॉजी में चला जाता है। तो उसमें फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, व्यक्ति Yes. बोलता है। क्वांटिटेटिव में जो व्यक्ति नहीं बोलता, वहां स्कोर बोलता है। Good boy, sir. हो गया ना ये क्लियर है? तो Yes, वहां sir. पे नरेटिव, नरेटिव कहानी है, नरेटिव है, हम लिखते हैं, ये कहानी लिखते हैं ना। जब कहते हैं माई विश टू फेयर, तो मेले में क्या क्या देखा, दिवाली का मेला, दिवाली का मैच देखा, हमारे से ऐसे लिखवाए ना स्कूल में, Yes, sir. मैच का। हाँ, वो यही था ना। एक तो मेरे जैसा भी था, कहता अध्यापक बोलता तो उन्हें लिखना था फुटबॉल का मैच, कहता तो तूने क्यों लिखा था, बारिश हो गई थी, मैच हुआ ही नहीं, मैं क्या लिखूं। अब उसको वो 0 नंबर देगा, लेकिन वो बात देखियो, ये उसकी क्रिएटिविटी थी जिसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। Yes, तो sir. अध्यापक ने कहा था तुम्हें लिखना है, लिखना कहाँ से, इमेजिनेशन लिखना है, ये आपने इमेजिन करना है ना। उसने तो कह दिया बारिश होगी तो मैं तो, मैच हुआ ही नहीं तो मैं क्या लिखूंगा, है। तो अध्यापक को उसके उस थॉट को कहीं पे इंटेग्रेट करना चाहिए था। समझिए आप इस बात को। Yes, ये sir. पेडागोजी का क्वेश्चन है, पेडागोजी क्वेश्चन है कि विद्यार्थी लगता है मैच नहीं हो तो मैं क्या लिखूंगा। देखिए ना, उसने जवाब तो ठीक दिया है, लेकिन हम उसको ठीक नहीं मानेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन कहता है कि उसको लिखना पड़ेगा। Yeah. आगे ना बात से तो वो फिनोमिनल को हमने, आपने देखिए स्कूल एजुकेशन में किस तरीके से फिनोमोलॉजी को हमने यूज किया है। और ये केस स्टडी है। अभी जो हमारे स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप अपने देखिए, जहाँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में जो लोग चल रहे हैं, स्कूल के समय के अपने सहपाठियों को नजर मारें, सभी तो यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचे, सभी कॉलेज में नहीं पहुंचे, सभी इस सुविधा में नहीं बैठे हुए, जैसे आप बैठ के बात कर रहे हो मेरे साथ। तो कहाँ गए वो लोग हैं? उनके उनके ऊपर काम करना, तो केस स्टडी में जाए। कोई कोई स्टूडेंट आया, आके 1 साल के अंदर ही छोड़ के चला गया, क्यों जाना पड़ गया उसको, कहानी है ना वो ये। तो केस Yes, sir. स्टडी में, हाँ, वो वहां पे डाटा नहीं आएगा, डाटा कौन सा आएगा, उसकी फीलिंग जाएंगी, उसके रिएक्शन जाएंगे, उसकी पीड़ा आएगी, उसके एस्पिरेशन जाएंगी, उनके शब्द, शब्दों का प्रयोग, समझे। क्वालिटेटिव रिसर्च में शब्दों का प्रयोग होगा, और फीलिंग जो अभिव्यक्ति है व्यक्ति की, हो गया ना जी। ग्राउंड रूट थ्योरी है। फिर एथनोग्राफी तो हम नहीं करते हैं, एथनोग्राफिक स्टडी होती है। वो क्या है, जब एक ही इवेंट को एक सिचुएशन में रहकर आप उसको फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करते हैं, फॉर 1 ईयर 2 ईयर, एथनोग्राफिक स्टडी स्कूलों में भी करते हैं। जहाँ एक गांव में जाके हम उसको लगातार 2 साल 3 साल 4 साल देखते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे कोई विपदा आती है, कैसे लाइफ को वो देखते हैं, जब कोई कोई त्योहार आता है कैसे आता है, जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो कैसे करते हैं, शादी कैसे करते, जितने भी लाइफ जीने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जब उनको एक व्यक्ति 2 3 4 5 साल 10 साल तक लगातार देखता है,
तो वो एथनोग्राफिक स्टडी है। वहाँ अगेन वहाँ पे डाटा नहीं है, डाटा किस फॉर्म में है, लिखे हुए शब्दों के रूप में है, ऑब्जर्वेशन है उसकी, एनेक्डोट्स हैं, कहानियां हैं, छोटे छोटे किस्से हैं, लिखिएगा शब्दों शब्दों का जाल है सारा ही। फिर उसको इंटेग्रेट कैसे करना, वो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ना इंटेग्रेटिव रिव्यू बताएगा। जो डिस्कशन है ना जल्द, वो भी वही बात है, नैरेटिव को हम कैसे बिल्ड करते हैं, होगी जब बात एक। फिर ग्राउंडेड थ्योरी है। ग्राउंड थ्योरी में हम जो पुलिस है हमारी, या एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी कोई कोई जो है स्पेशल एसआईटी बना रही है, वो बेसिकली ग्राउंड थ्योरी पे काम करती है। उनका एविडेंस नहीं होते, कोई हल्का सा एविडेंस तो वहां से आगे आगे चलते हैं, उसको हम भी यूज करते हैं। तो एथनोग्राफी है, नरेटिव है, केस स्टडी है, फिनोलॉजी है, ग्राउंडेड थ्योरी है। ये 5 मेथड है जहाँ पे हम व्यक्ति विशेष को व्यक्ति मानकर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। व्यक्ति अगर फोकस में आता है तो आपके पास केस स्टडी है। अगर व्यक्ति का जीवन फोकस में आता है, सिचुएशन आती है, कुंभ का मेला है, तो फिनोमोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसी फिनोमेनन को हम लंबा समय करते हैं ऑब्जर्व, कितना समय, जो गंगा किनारे रहने वाला है, जो प्रयागपुर में रहने वाला कई सालों से रह रहा है, उसने 5 6 7 उसने कुंभ देख लिए हैं, बैठा हुआ ना वहां पे समाधि लगाए। उस समाधि लगाए व्यक्ति से जब आप वार्तालाप करोगे और जब उनको वो करेगा, वो आपको एथनोग्राफी के लिए आपका एक वो बन के आएगा, सोर्स ऑफ डाटा बन के आएगा। तो उसका उसका लिखने का स्टाइल इस रिसर्च से बिल्कुल डिफरेंट होता है, कॉन्टेक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए उसका करने की विधि, लेकिन स्टेप यही रहेंगे, स्टेप में कोई परिवर्तन नहीं होएगा, एनालिटिकल टेक्निक कोई नहीं आएगी, लेकिन क्या आएगा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आएंगी, उन्हीं से हम उसको कोलेट करते हैं। फिर चलिए हम अब सेकंड पार्ट पे शिफ्ट करते हैं, कुछ बातें उसमें से। पहले पेपर हम शेयर करेंगे ह्यूमन वो जो है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाला। हाँ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाला और मेंटल हेल्थ का। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड हाँ आई होप कि सबके पास पीडीएफ होगा। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है सो यू ऑल कैन रेफर टू द साइकिनेक्ट ग्रुप, उस पे द पीडीएफ हैज बीन शेयर्ड। विल बी स्टार्टिंग विद द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। देखिए पहले इसके टॉपिक में आ जाइए। एक सेकेंड। हाँ हाँ टॉपिक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, कंपैरिजन एंड कोरिलेशन। बट इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं ना, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ, और कंपैरिजन किसका कर रहा है अभी हमारे को पता नहीं है, लेकिन फिर कोरिलेशन तो निकाल रहा है। ये टाइटल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी तो है, आगे जाके क्लियर हो जाएगी बात। अगर हम अभी आप नहीं करेंगे, मैं इसका देखता हूँ, इसके अंदर उसने ऑलमोस्ट कितने रेफरेंस दे रखे हैं। ये पेज 124 से लेकर 126 ऑलमोस्ट 2.5-3 पन्ने की बियोग्राफी इसने दे रखी है, और एक पेज पे तकरीबन 12-15 रेफरेंस आते हैं। इसमें 40-50 रेफरेंस इसने दे रखे हैं। जब देखोगे उसमें जर्नी देखेंगे आप इसकी कि कितने साल की जर्नी इसने तय कर रखी है, और उसमें किस प्रकार के टाइटल आए हुए हैं। जब आप एंड में चले जाइए, हाँ हम उसको बियोग्राफी रेफरेंस पार्ट को ध्यान से देख लेते हैं। ये है जो सर। मेरे को दिख रहा है, पहला रेफरेंस 12 का है, फिर दूसरा 12 का, 14 का है, 8 का है, चल रहे हैं ना आपके साथ। यस सर। अच्छा फिर उसके बाद फिर है 19 का है, 16 का है, 14 का है, जा रहा है ना आपको, नजर आते जाएंगे। और फिर आप चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, तो ईयर उनके 18, 15, 1 2001, 10 आ गया, 13 है, 20 है, दिख रहा ना ईयर, इसका 11 है, 17 है, 15 है, तो 10 है, 9 मेरे को देख गया, 13 है,
2000 2000 भी है, 2003 है, रूथमैन का लास्ट में पड़ा हुआ है। और अगले पन्ने पे आइए, ये अल्फाबेटिकल है, ये तो आपको देख गया ना, Yes. अल्फाबेटिकल चल रहे हैं हम। Yes, sir. तो 2001 का भी है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2013 का है, और बिल्कुल लास्ट में 1989 जकरमैन का रेफरेंस देखिए, कहाँ हाँ, तक पहुंच गए, 89 तक पहुंच गए। 89 तक। 89 से लेके 20 तक की जर्नी इसने तय करी है। Yes, sir. समझ कितने साल की जर्नी होगी, ऑलमोस्ट 30 इयर्स की। हेलो। Yes, sir. हाँ, तो एक बात होगी ना ये, फिर उसमें जब हम टाइटल पढ़ेंगे, मैं 2 टाइटल पढ़ रहा हूँ उसके अंदर, जो हमको एक लीड प्रोवाइड करेंगे। एक टाइटल पढ़ी है इसके अंदर, चक्र चक, चरखा भाई और मुतांजी 2014 का है, द इफेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ऑन इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ इन इरानियन स्टूडेंट्स एन एक्सपेरिमेंट स्टडी, है ना वो, आया नजर आया, चरखा भाई, CH। हेलो। Yes, sir. मिल गया। हाँ हाँ हाँ, तो इस टाइटल में उसने स्पष्ट कर रखा कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। Yes, sir. अब एक पन्ना उल्टाते हैं हम, अगले पन्ने पे आ जाइए। अब आप देखिए, मोहम्मदी का रेफरेंस देखिए, 2015 का मोहम्मदी। एक मिनट। मोहम्मदी के नीचे पंथ से ऊपर है। हाँ सर, मिल गया। हाँ, इसमें पढ़िए इम्पैक्ट ऑफ, नहीं, इम्पैक्ट वो कर, इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ मेल हाई स्कूल स्टूडेंट्स। देखिए वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी, ये भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। वहां उसने बोल रखा जहां बोल रखा, लेकिन टाइटल से हमारे को पता लग रहा है ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। एक हम और देखना चाहते हैं, वो देखिए आप, जकरमैन का देखिए लास्ट वाला। हाँ सर। स्ट्रेस, सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल हेल्थ, हाउ डज जेंडर मेक अ डिफरेंस। तो ये जकरमैन का आर्टिकल जेंडर डिफरेंसेस को एक्सप्लोर कर रहा है अक्रॉस 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, स्ट्रेस, सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल हेल्थ। मैं एक स्टडी और लेना चाहता हूं मैं, वो सिंह ए कौर पी है, दिख रहा है, सिंह ए कौर पी एंड सिंह टी, 3 हाँ, लोगों का 2010 का। क्या क्या है इसमें, पढ़ो तो, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, अल्ट्रुइज्म। school environment and academic achievement as predictor of mental health of adolescents. हाँ देखिए, मेंटल हेल्थ डिपेंडेंट वेरिएबल है, हाँ। और 4 उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन कौन से, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस 1, अल्ट्रुइज्म 2, स्कूल एनवायरनमेंट 3, एकेडमिक अचीवमेंट 4। इसका मतलब मल्टीवेरिएट स्टडी है। तो जब आप बिbliography नजर मारेंगे तो आपका रिसर्च की जो आपकी टाइप्स है ना, एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, कोलेशनल है, उसमें कंपैरिजन कर रखा है, ये आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। आई थिंक आई एम एबल टू कम्युनिकेट दिस थिंग, कि Yes जो sir. बिbliography है, यहाँ से हमारे को थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है कि इसके अंदर जो आर्टिकल दिए गए हैं, जो जिनको इसमें अपने रिव्यू में लिए थे, तो उसमें कुछ स्टडी एक्सपेरिमेंटल हैं, कुछ एक डिस्क्रिप्टिव हैं, कहीं कोलिशनल स्टडी होएगी, कहीं पे वो कंपैरिजन की होगी, टी टेस्ट की या नोवा की होएगी। तो वो शब्द जब आप उन पेपरों के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके। Yes sir. अब हम इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं अभी देखेंगे, क्योंकि वो फिर पहला हेडिंग क्या बना रखा है, इंट्रोडक्शन। दूसरा हेडिंग क्या बना रखा है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। हाँ। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बना रखे हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ, 2.1 कर रखा है ना। Yes sir. तो
फिर उसके बाद वो सीधा चले गया 3 पे, मेथडोलॉजी। तो उसने देखिए 2 पन्ने का उसने उसका दोनों वेरिएबल का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया है। कहाँ से लिया इसने? रिव्यू ऑफ लिटरेचर से लिया है। किताबें हैं या उसके जर्नल के आर्टिकल है, वहाँ से उसने लिटरेचर को लेके अपनी कहानी बिल्ड करी है। अब मेथोडोलॉजी में देखिए उसने क्या कर रखा है। पहले क्या ले रखा है इसने? पार्टिसिपेंट्स की है ना, 3 का हेडिंग 3.1 पार्टिसिपेंट्स, जो उसका सैंपल है ना। हाँ सर। तो उसका सैंपल है 256 स्टूडेंट्स का है। हम्म, तो उसकी उसने ब्रेकअप दे रखी है। ठीक हो गया ना। हाँ। और फिर उसने इंस्ट्रूमेंट बता रखे हैं नीचे 3.2 में। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का स्केल है, और फिर एक उसका मेंटल हेल्थ की मेंटल बैटरी। हेल्थ। ठीक हो गया ना ये बात। यस सर। मेथोडोलॉजी से ऊपर आप पढ़ेंगे 4 बातें लिखी गई हैं। हम्म, ये पेज 119 है ना। हाँ 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 हाँ। 4 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात, डाया स्टूडेंट्स स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड मेंटल wellness depend on their gender. हेलो, हाँ सर। क्या मतलब बना इसका? सर कि क्या जेंडर रिलेटेड डिफरेंसेस मिले स्टडी में कि नहीं, कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ लोगों में मेंटल हेल्थ जेंडर देखिए, वाइज। अब उसने ये गर्व करते हैं उसने, आप मेंटल हेल्थ नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? मेंटल वेलनेस कह रहा है। हाँ, उधर क्या था टाइटल में क्या है? मेंटल हेल्थ। हाँ, नेक्स्ट दूसरे में आ जाइए। इज देयर अ हेलो, डिफरेंस? अब मेंटल हेल्थ पे आ गया। हाँ, is there a difference कितना? in mental health between students from different streams? हम्म, तीसरा, uh, तीसरा है does वेदर और नॉट। whether or not students from various streams have varying levels of spiritual intelligence. चौथा, चौथा है does spiritual intelligence have anything to do with uh, mental health? हाँ। तो अब चौथे ये चौथा क्वेश्चन है, इसका मतलब समझाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हेलो, हाँ सर। दोबारा बोलिए, चौथे को दोबारा बोलिए। Does spiritual intelligence have anything to do with mental health? हाँ, क्या क्या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का कब Mental health. मेंटल हेल्थ से कोई नाता है? यही है ना। हाँ सर, तो correlation. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, मेंटल हेल्थ डिपेंडेंट हो गया है। जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में आ गया, क्या रिलेशनशिप आ गया? नोट कर लीजिए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जब वो ये देखना चाहता है कि डज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लीड टू मेंटल हेल्थ। आई थिंक यू फॉलो दिस पॉइंट। Yes sir. हाँ, तो ये उसके रिसर्च क्वेश्चन है। जब पढ़ते हैं तो हमारे को समझ आना शुरू हो गया कि वो क्या करना चाहता है। ठीक होगी बात। एक वो Yes. ग्रुप में फर्क देखना चाहता है, जेंडर वाइज और स्ट्रीम वाइज। एक वो देखना चाहता है कि दोनों वेरिएबल के बीच में संबंध क्या है, और ये संबंध कैसे देख रहा है, क्या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है या नहीं होती। आगे ना, Yes. डिपेंडेंस का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। रिसर्च में हम हमेशा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में देख के चलते हैं। चलो, फिर उसने डाटा लेकर आ गया। अब सीधा रिजल्ट्स में आइए, टेबल 1 पे आ जाइए। Yes sir. लगा दिया. हाँ, Comparison between male and female students with respect to their spiritual intelligence. हाँ, मीन कितने दिख रहे हैं? मेल में 228.3 और फीमेल में 222.03. तो डिफरेंस कितना दोनों में? ऑलमोस्ट 6.22 का हाँ. मीन डिफरेंस। नहीं बताया ना। नहीं, ये नहीं दबा बताया. हाँ, तो उसने टीम निकाल रखी है। स्टैंडर्ड डिवीजन दिख रही है 12.57, 14.12। टी वैल्यू उसने 1.74 दे रखी है। हाँ. टी वैल्यू क्या होती है? टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। यस सर. तो ये इसका जो नीचे उसने एक पी लेसर देन 0.05 लिख रखा है ना। हाँ सर. इसका क्या मतलब है? जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल सिग्निफिकेंस. तो हमको ये पता है कि टी वैल्यू अगर 1.96 हो, सैंपल लार्ज हो ना,
हाँ सर। जो वैल्यूज है वो अभी हम उसकी बात नहीं कर पाएंगे। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो होते हैं, एक 0.5 का, एक 0.1 का। हम्म। हाँ सर। तो इसने 0.5 मार रखा है, उसका कुछ नहीं बोल रखा है। और जो लिख रहा है कि नो सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंस वाज फाउंड, ठीक है ना, हाँ क्योंकि टी वैल्यू इसकी नॉट सिग्निफिकेंट है। हम्म। हाँ लेकिन ये जो निशान दे रहा है वो सिग्निफिकेंस का दे रहा है। जो पी है ना, अगर नॉट सिग्निफिकेंट थी तो पी ग्रेटर देन 0.05 होनी चाहिए थी। हाँ समझिए, ऐसे गलत लिखा हुआ है इसने। हाँ। पकड़िए गलती है। यस सर। आप टेबल 2 में आ जाइए। Comparison between male and female students with respect to their mental health. हाँ, अब वो मेंटल हेल्थ भी टी वैल्यू वही कर रखा है ना, 0.33 पॉइंट लेसर देन 0.05। लेसर देन का साइन हम सिग्निफिकेंस के लिए देते हैं और सिंगल तारा बना के लिख देते हैं। एपी स्टाइल है वो, ठीक है ना। Okay sir. कोई नहीं जाएगा। हाँ हाँ, होगी ये बात है। हाँ sir. अच्छा, अब एस टी देखो कितनी कितनी है। 1.65 और 1.5। ऊपर एस डी कितनी है। ऊपर तो दूसरी है 12.57 और 14.12। कुछ समझ आएगी, अभी आगे जाके फिर समझाऊंगा। 204 मीन हो और 1.65 स्टैंडर्ड डिविएशन हो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। अच्छा, टेबल 3 में आ जाइए। Dis- depicts the मीन, descriptive हाँ study of students' mental health by stream. हाँ, तो 4 ग्रुप है ना, ह्यूमैनिटी, साइंस, सोशल साइंस और कॉमर्स के। Yes sir. मीन डिफरेंस 274, 269, 270, 267। Yes. एस टी एन दिख रही हैं 8 8 8 10 7। Sir. हम्म। Yes sir. ठीक है ना। ये टेबल 1 के साथ कंपेयर करो तो एस टी उसके मुकाबले में कम दिख रही हैं। हाँ। अच्छा, अब अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ANOVA results पता हाँ, है। तो नोवा रिजल्ट में इसने बिटवीन ग्रुप बता के एफ रेशो बता दी, एफ छोटी लिखी हुई है, एफ कैपिटल होती है। हम्म। हाँ सर। आपने पढ़ा ना, एफ रेशो कैपिटल होता है ये, ठीक हाँ है ना। हाँ हाँ और उधर पी वैल्यू दे रखी है, पी वैल्यू वहां तो दे नहीं रखी थी। हम्म। हाँ जहाँ दे, और उधर वो निशान वही दे रखा है, कौन सा, पी 0.05 वाला है। हाँ हम्म। नीचे भी 0.05 दे रखा है निशान है। हाँ ये उसको पता ही नहीं कि पी 0.5 कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। हाँ। तो एफ वैल्यू को 6.33 है ना। जब हम नोवा लगाते हैं तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बन के आती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम सुना हुआ ना आप लोगों ने। हाँ सर। है? तो जहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए थी, 3 ग्रुप थे ना हमारे पास। 2 DF, G-1 था, और उधर टोटल सैंपल इसका 256 है, तो 253 बन के आई है। और टोटल DF इसकी 255 लेस देन 1 होती है सैंपल से ना, ओवरऑल। ये टेबल अधूरा है। ये हाँ टेबल क्या है, अनोवा का समरी का अधूरा है। हाँ तो आपने रिसर्च में कौन सी बुक देखी, हम तो गैरेट का बुक है, स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी एंड एजुकेशन देखते हैं। हाँ सर। हम लोग जो भी। कि रिसर्च आप भी देखते हो ना, है। हाँ 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 उसमें, हाँ, उसमें देखिए आप टेबल अनोवा की समरी कैसे बन के आती है। ये उसके हिसाब से नहीं बनी हुई है, ये रॉन्गली प्रेजेंटेड है। हाँ और जो पी वैल्यू है वो उसमें तीनों जीरो नजर आ रही है ना। हम्म? हाँ एक तारा बना दिया है। हाँ। 3 जीरो का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, कोई मीनिंग नहीं होता है इसका। कोई। हाँ हाँ, नहीं होता है। जो एसपीएसएस की आउटपुट है ना, जो हमारी स्टैटिस्टिकल आउटपुट मिलती है ना, उसमें वो क्या करते हैं, वो जीरो कहीं आगे बढ़ी, प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, आपकी 100 में से एक गलती। हम्म। हाँ हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो 0.05 को हम कैसे पढ़ते हैं, 100 में से 5 गलतियों को हम इग्नोर करते हैं। पॉइंट हाँ जीरो वन हुए तो एक 100 में से एक गलती को हम इग्नोर कर सकते हैं। 0.001 तो 1000 में से एक को छोड़ सकते हैं। ठीक। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कहीं ना कहीं आगे पड़ी होगी। तो इसको ये देखना नहीं आया है कि 001 का मतलब तो होगा सर्टेनिटी होगी ना। हाँ सर। हाँ हाँ। हेलो हाँ हाँ हेलो, हाँ अखिलेश, हाँ, समझे। हाँ हाँ, हाँ सर। बैठो प्लीज। हाँ,
आई थिंक यू फॉलो दिस पॉइंट है। yes sir, totally. हाँ हाँ, तो बैठो आप प्लीज। हाँ तो इसने गलत कर रखा ना जी। तो हाँ ये sir, वैल्यू को 05 पे 01 पे सिग्निफिकेंट कहना था, वो हमने अप टेबल देखना था गैरेट की बुक से। ठीक होगी बात। yes sir. हाँ सर हाँ सुखराज का कोई डाउट था, सो हाँ हाँ उसको देख सकते हाँ, क्या है? हैं। सुखराज, यू कैन अनम्यूट बोलो। योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। हेलो सुखराज। ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से है, सुखराज। अच्छा। हाँ सुखराज। ਹੈਲੋ हेलो, हाँ जी सुखराज। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ हाँ हाँ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵੈਲਨੈਸ ਨੂੰ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, हाँ ਉੱਪਰ हाँ ਵਿੱਚ। हाँ 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 ਹਾਂਜੀ। हाँ। ओके ये सर। शेर का शिमले तो मान लो। हाँ हाँ हाँ, कोई ना, कुछ ना कर लेना, जाओ। हाँ हाँ ओके। हेलो, हाँ सर। होगी बात से। हाँ सुखराज हाँ का वो पॉइंट है ना, वो हमने पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया। समझ रहे आप, परसेप्टिव है हाँ ये। हाँ सर। टेबल 4 में आ जाइए। टेबल 4 किसके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बाय चल स्ट्रीम में? पर। हाँ, उसकी मीन देखिए क्या क्या दिख रहे हैं। 208 है, 203, 203। 205 और 201। हाँ, अब स्टैंडर्ड डिवीजन देखो। 12.26, 13, 12, 5। हाँ ठीक है, जाए। 12, 13, 12, 13 दिख रही है ना। हाँ सर। अब कम बैक टू टेबल, टेबल 2। हाँ सर। नहीं, टेबल 2 मेंटल हेल्थ का। टेबल 1 में आ जाइए, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का। हाँ सर। वहाँ एसडी कितनी है? 12 और 14। 12 और 14। जहाँ पे कितनी चल रही है? 12, 13 और 5। हाँ, 12, 13 और 5। हाँ, जब 5 आ गई, सुखराज को कहना पूछे बताए कि 3 की वेरिएबिलिटी एक जैसी है, चौथे की बहुत कम होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस और हेट्रोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। ਹੈਟਰੋਜੈਨਿਟੀ सर। हाँ हेट्रोजेनिटी, तो वो एक जैसी नहीं दिख रही ना। ठीक हो गया ना। हाँ सर। अच्छा, अब जो मेंटल हेल्थ वाला, अब आप टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 2 को कंपेयर करिए कि टेबल नंबर 2 भी मेंटल हेल्थ का है ना। हम्म हाँ सर। तो उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी दिख रही हैं? एक का। 1.1 पे है, 1.65 और 1.5। हाँ, ये टेबल 2 को रीड किया ना आपने, टेबल 3 को रीड करिए एसटी। टेबल 3 में तो सर 8, 10 और 7 पे है। तो वो तो सैंपल तो वही है ना इसका। है, हाँ तो हाँ एक थोड़ा होगी स्टैंडर्ड, या तो 8.02 वाली गलत होगी या 1.65 वाली गलत होगी। हाँ। अब बताओ सुखराज, कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है? ਟੇਬਲ 2 वाली सर गलत होएगी जी। टेबल 2 गलत होएगा, बिकॉज जो वैल्यूज है वो, जो आपका मीन इतना हाई है, तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन भी 10, 12, 15 के करीब होना चाहिए, क्योंकि मीन 200 से ऊपर घूम रहा है ना। हाँ सर। और उसका मीन भी ऐसे घूम रहा है, किसका, अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का भी। हम्म मीन 228, 223 दिख रहा है ना पहले में। हाँ वो इसका भी इतना दिख रहा है। इन्हें दोनों टूल की डिस्क्रिप्शन करते हुए ये नहीं बताया कि कितनी कितनी आइटम थी, उस मीन का मतलब क्या बनेगा। क्यों सुखराज, उसने आइटम नंबर नहीं बताया है कितने कितने हैं ना, स्कोर की रेंज दोनों वेरिएबल की। ਇਹਦਾ उसने ਜੀ सर। सुखराज, हाँ नहीं बताई ना। नो। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰ, ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ हाँ, ਅੱਗੇ ਕੀ नंबर ਹੋਏਗੀ ऑफ ਸਕੋਰਿੰग ਜੀ। कितने हैं, तो मिनिमम स्कोर कितना तो मैक्सिमम कितना। ठीक है ना। ਹਾਂਜੀ जी। हाँ, मिसिंग है ना ये। तो and we cannot say anything about level of spiritual intelligence and level of mental health among university students. We can't make any statement with regard to level of, हम कैसे बोलेंगे कि उनकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ज्यादा है, कम है, या लेस है।
So we cannot conclude without knowing that thing. और जो टेबल जो 2 को पढ़ेगा और 3 को पढ़ेगा, अगर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन की कॉन्सेप्ट नहीं पता होएगी तो वो उसको पेपर को कैसे समझेगा। ये हम आप इसके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं। ठीक होगी ना जो बात? Yes, sir. हाँ, नाउ गो टू द टेबल 4 भी हो गया हमारा। हाँ, हाँ टेबल 5 में भी उसने वही बात कर रखी है। हाँ जो ओनोवा की टेबल है ना, उसने एफ रेशो का और उसका वो कर रखा है। हाँ और फिर इसने क्या कर रखा है, टेबल 5 में चलेगा तो वो टी वैल्यू का और एफ वैल्यू का जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो सही नहीं है, और उस स्टैंडर्ड डेविएशन का इसको कहीं चेकआउट नहीं कर पाया कि वो उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पॉइंट कैसे हो गई, नहीं हो सकती ना वो। हाँ तो ये बातें होगी। अब ये आ गया है टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में क्या कर रखा है, कोरिलेशन बिटवीन subscalar. मेंटल हेल्थ। हाँ, mental health and spiritual intelligent behavior. कितना कोरिलेशन है, 0.197। दिख रही वैल्यू कोरिलेशन की? हाँ सर, 1 पॉइंट 0.197. हाँ, इसको वो सिग्निफिकेंट कह रहा है। 256 एन है और डी एफ इसका 254 होएगा। एन माइनस 2 हो जाता है ना कोरिलेशन के लिए। तो सुखराज, इस कोरिलेशन को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सुखराज हेल्प मी। हेलो। हेलो, हाँ, हेल्प मी। ये कोरिलेशन स्पिरिचुअल 0.179 है। इंटेलिजेंसी एडा है सर। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, हाँ, जी, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। देयर पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट कोरिलेशन between spiritual intelligence and mental health। ठीक। मेंटल हेल्थ। जी नाउ एकदम से एब्स्ट्रैक्ट में आ जाओ, एब्स्ट्रैक्ट में आओ। Yes sir. आगे हाँ sir. एब्स्ट्रैक्ट की लास्ट लाइन पढ़ी है। The correlational analysis indicated that there is a significant correlation between spiritual intelligence and mental हाँ, health of अब इसमें students. 2 गलती हैं स्टेटमेंट में। करो करेक्ट इसको। दो गलतियां हैं इसमें। पहली गलती तो है जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नहीं लिखा ना। नहीं लिखा है। सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव कोरिलेशन लिखना था ना इसने, हाँ, वो मिसिंग है। और स्टूडेंट कौन से थे इसके? वो भी मेंशन नहीं ठीक। है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट लिखने पड़ेंगे। हाँ, मिस्टर सुखराज, जी सर। ये दोनों बातें, ये कंक्लूजन इसने 2 पॉइंट से इम्प्रूवमेंट चाहता है ना कि सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्पिरिचुअल हाँ एंड जी मेंटल हेल्थ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। जी सर। हाँ, तो बाकी उसके रिजल्ट कहीं पे जो सिग्निफिकेंट है वहां पे वो, अब आप वहां से पढ़ लीजिए रिजल्ट इसके। तो मैं स्टेटमेंट से शुरू कर रहा हूँ, वो स्टेटमेंट शुरू हो रही है रिवील, हाँ, results reveal significant difference between streams, followed by this। पढ़ा जा रहा है ना वो। जी significant difference in mental health, mental health score reported by this and this and this and this do not differ significantly। जहाँ तो नॉट से डिफर डू नॉट सिग्निफिकेंटली, वो तो क्लियर होगी बात के एक जैसे हैं। जहाँ पे डिफरेंस आ गया है वहां पे हमको क्या कहना पड़ना था, हाँ, किसका ज्यादा है। अब आ जाओ उस टेबल में, कौन से टेबल में, टेबल 3 में आ जाइए। ओके सर। टेबल 3 ए, 3A। हाँ जो हाँ 274 मीन है, 274, 269, 270, 267, ये ह्यूमैनिटीज का वालों का जो मेंटल हेल्थ है वो बेटर है एज कंपेयर टू साइंस, सोशल साइंस एंड कॉमर्स। कॉमर्स।
Yes, sir. और साइंस और कॉमर्स का नहीं हो, साइंस और सोशल साइंस वालों का नहीं होएगा। तो बिल्कुल एक जैसी हैं वैल्यूज। हाँ, और हो सकता है सोशल साइंस वालों का कॉमर्स से ज्यादा होए। हाँ, 3 का डिफरेंस दिख रहा है ना, 3 का। हाँ, सर. तो इसको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कौन सा डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। इसने टेबल नंबर 3C में कुछ कह रखा है, लेकिन जो उसको स्पष्ट टेबल क्लियर नहीं कर रहा है उस बात को। टेबल 3 है ना, हाँ, सर. हाँ, हाँ. ह्यूमैनिटी को तीनों से कंपेयर कर रहा है ना। हाँ, हाँ, सर. एक जगह कह रहा है कि 0 to 8 है वो 9, 2 जगह तारे बना रहा है, एक जगह नहीं बना रहा है। ऐसे ही है ना, नीचे हाँ, कहीं नहीं बनाया है। इसका मैं ह्यूमैनिटी वाले साइंस वालों से और कॉमर्स वालों से बेटर हैं। ह्यूमैनिटीज का ग्रुप साइंस और कॉमर्स से बेटर है, सोशल साइंस से बेटर नहीं है। इतना क्लियर हो गया ना जहां से। yes, sir. हाँ, तुझे लिख नहीं पा रहा है। आप समझे इसके एनालिसिस में कहाँ कहाँ दिक्कत आ गई। हाँ, तो उसका जो कोलेशन का वैल्यू है उसको भी वो ठीक से नहीं बोल पाया, और जो उसके टी टेस्ट का, नोवा के बाद टी टेस्ट के रिजल्ट है उसमें भी वो थोड़ी परेशानी कर रहा है। यही बात हुई ना। yes, sir. हाँ, सुखराज कोलेशन के बारे में हमने एक चीज और बोलनी है अभी। जी सर. कोलेशन 1.1 कितना है, 179 है ना। जी सर. तो सिग्निफिकेंट तो हो गया। सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल सर. हो गया। जी. व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे, लो एवरेज, लो मॉडरेट और हाई, या नेग्लिजिबल। लो सर. लो, वो आ गया ना। जी. हाँ हाँ, यू यू रिमेम्बर के जो बेस्ट का फार्मूला है ना, बेस्ट का टेबल है, फार्मूला नहीं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट वाली बुक से, कि जी जी पॉइंट सर. 2 तक के कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट 2 से पॉइंट 4 तक क्या बोलते हैं हम, लो। ये नेग्लिजिबल और लो के बीच में जा रहा है, लो है तकरीबन, लो मान सकते हैं। मॉडरेट, मॉडरेट तो नहीं है ना, लो ही है। जी सर. तो एक बात इसने ये छोड़ रखी है, फॉर ऑल स्कॉलर वी हैव टू मेक इंटरप्रिटेशन अबाउट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड ऑफ, एक तो उसकी दिशा क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और सेकेंडली क्या है उसका जो है मैग्नीट्यूड कितना है। दोनों दो इंटरप्रिटेशन हम कोरिलेशन की करते हैं। एंड टू नो अबाउट दिस, वो बेस्ट की बुक मैं सुखराज को कहूँगा उसका टाइटल शेयर कर ले, वो टेबल शेयर कर ले उसमें से, बुक में से। ओके सर. ठीक. नाउ अगेन वी कम बैक टू द, आप उसमें पीछे मुड़ के आइए, कहाँ पे, पेज नंबर 119 पे। हाँ, sir. उसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या पढ़ा था हमने। Does spiritual intelligence have anything to do with mental health? हाँ, क्या हमारा रिजल्ट क्या कह रहा है पेपर का। देयर इज अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हाँ, हेल्थ। yes, तो sir. व्हाट शुड हैव बीन द कंक्लूजन, यस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट्स टू मेंटल हेल्थ। Mental health. पर मेंशन नहीं है, सर. हाँ नहीं है ना, हाँ वो हमने मेंशन करना है, हाँ, हमने जितना पढ़ा है ना इसमें अब है, हाँ, वो लिख नहीं पाया, लेकिन अब हमने रिजल्ट देख के हमको समझ आ गई है कि इस क्वेश्चन का आंसर डज का आंसर क्या बन के, यस इफ द कोल इज सिग्निफिकेंट वी विल से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हैज समथिंग टू डू विद मेंटल हेल्थ। क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो मोर द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेंटली हेल्दी पर्सन। यही बात yes. बनी ना। हाँ, हाँ, सर. ये शब्द किसके हैं, रिसर्चर के हैं, उसके नहीं है। जो जिसका पेपर है उसके नहीं है, पेपर राइटर के नहीं है, जो किसके हैं, जो रिव्यू कर रहा है रिसर्चर है। जी, हाँ. ये Yes, हमने बनाए हैं। इट विल बी योर ओन कंट्रीब्यूशन। yes, sir. यू फॉलो दिस पॉइंट।
यस सर, पर सर जब हमने अभी देखा कि कैलकुलेशन में इतने सारे एरर्स थे, तो हाँ फिर हम इस रिसर्च को वैलिड कैसे मान सकते हैं? मतलब तो फिर तो हमारा जो रिजल्ट आया वो भी गलत हो सकता है। कोलेशन तो उसने नहीं, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन के में स्टेप वो ना है, जहां तक मेरे को समझ आ रही है उसने स्टैंडर्ड डेविएशन जो 1 पॉइंट कुछ रिपोर्ट कर रहा है ना, हाँ सर। वो 1 पॉइंट कुछ कर रहा है, वो उसे कहीं गलती ऐसी हो गई है, अब क्या कहें कि जब वो कहीं एसपीएस की आउटपुट लेते हैं डेसिमल कहाँ लगाना है, उससे वो गलती हो गई है। वो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होनी चाहिए ऑलमोस्ट जो नीचे है वो कहीं उसको ने और टेबल से कहीं पिकअप करके लगा दी होगी। समझ रहे आप उसकी जर्नी तय, मैंने कहा था ना कि उस रिसर्चर की जर्नी में तय करना पड़ेगा, बोले क्या कर रखा समझना पड़ेगा, और वहां से हमने उसको क्रिटिकली एनालाइज कर दिया। लेकिन हमारे को जो मीन एस्टी निकाल रहा है ना, बाकी तो देख ठीक दिख रहे हैं ना, स्टैंडर्ड डिविएशन गलत कर रहा है और टी वैल्यू का इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा है। समझ रहे आप? हाँ सर। हाँ, मतलब ऐसे पेपर आपको, अब इसने ये तो बात बता दी कि कोलेशन है बीच में, हाँ, स्ट्रीम वाइज डिफरेंसेस कहाँ मेंटल हेल्थ में डिफरेंसेस हैं, उसके अंदर नहीं है, किसके अंदर, उनकी जेंडर। नहीं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में डिफरेंस है। हाँ, जो इसके मीन एसटी है ना, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में डिफरेंस नहीं है, मेंटल हेल्थ में डिफरेंस है। जबकि ये 274 269 कर रहा है ना, हाँ 274 269 270 मेंटल हेल्थ। हम्म हाँ सुखराज, अब एक गलती और पकड़ी, पहले नहीं पकड़ी गई थी। मेंटल हेल्थ के ऊपर मीन कितने चल रहे हैं हाँ। सुखराज? 274 सर, 269, 270, 267 ही। हाँ, और हाँ जी। ओवरऑल मेल फीमेल च ओवरऑल मेल फीमेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 204 203 ਹੀ। हाँ, सैंपल तो वही है ना, हाँ जी। 256 वाला। हम्म तो 204 और 203 के मतलब उसका मीन कितने होने चाहिए, 204 के करीब ही होने चाहिए थे ना। हम्म हाँ हाँ सर। जी। तो ये तो टेबल नीचे वाला गलत हो गया ना बिल्कुल ही। जी सर। जी होगी ना प्रॉब्लम। हाँ जी। इसने, और जो उसके हैं मीन एसटी हमारे किसके, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के, वो मीन है 228 और 222। 228 222 ਜੀ। और इसको रीड करो टेबल नंबर 4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 203 203 205 221। ये प्रॉब्लमेटिक है ना। हाँ जी। यस सर। हाँ, क्या जजमेंट है, अब आप जजमेंट लगाओ पेपर के बारे में, क्या कहेंगे? आप ठीक बोल रही हो, क्या कहोगी? रिव्यू ऑफ लिटरेचर दे, इस पेपर का रिजल्ट देखकर हम इस पेपर को अपनी स्टडी में कोट नहीं करेंगे। करेंगे। होगी बात ये? यस। यस सर। और एक टेबल रह गया, उसको भी देख लें, फिर हम दूसरे पेपर भी जाते हैं। उसको कम समय लगेगा, इसमें ज़्यादा लग गया, लेकिन ये समझ तो आने लग गया ना, ऐसे पेपर मिलते हैं। यस सर। हाँ, ये नेक्स्ट टेबल में क्या कर रखा है उसने, रिलेशनशिप ऑफ डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ विद डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कर रखा है। अभी पहले ऊपर कोलेशन कौन सा है, वो था टोटल मेंटल हेल्थ, टोटल हाँ, सब टोटल मेंटल हेल्थ, टोटल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। नाउ दिस इज डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ विद डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। 6 डायमेंशन है, 1 2 3 कॉलम में डायमेंशन है उसकी, किसकी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की। हम्म रोज में किसकी मेंटल हेल्थ की डायमेंशन है। यस जी सर। सर। ठीक होगी ना ये बात? यस हम्म सर। और इस टेबल के एंड में जाओ पहले तो एक बार, लास्ट लाइन क्या ले, सेल्फ कॉन्सेप्ट के नीचे क्या लिखा गया है, जनरल इंटेलिजेंस। वो कहाँ से आ गई? जनरल इंटेलिजेंस था ही नहीं इसके पास हाँ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लिखी। ना, वो भी नहीं है, वो तो कॉलम में खड़ा है भाई। ये हाँ टोटल जी सर। मेंटल हेल्थ ये होना टोटल चाहिए। फिर दोबारा एंटर करता जी ने। नहीं, एंटर तो करते करते लिखे है भाई, गलत। जी सर। इंटेलिजेंस वर्ड ही नहीं कहीं इसके, वो जो जी डायमेंशनल कॉलम आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दिखा रहा है, तो लास्ट में टोटल आना चाहिए था अगर देना था इसने। हाँ जी। नीचे जो टोटल मेंटल हेल्थ है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी, ये ऑटोनॉमी, ये कौन किसकी डायमेंशन है, ये डायमेंशन मेंटल हेल्थ। किसकी है, मेंटल हेल्थ की। हाँ,
तो आप ठीक कह रही हो कि ये पेपर वर्थ रिजेक्टिंग है, Yes, sir. लेकिन जब इसका रिव्यू पढ़ोगे, इसके रेफरेंस देखोगे, इसका मतलब उसको स्टैटिस्टिक्स उसको नहीं आता है जो भी है ना। तो यू नो कि स्टैटिस्टिक्स कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्च के लिए, अगर आपने एम्पिरिकल स्टडी करनी है। Yes, sir. तो इस पेपर को अब हम क्लोज कर दें। और जो डायमेंशन वाइज कोरिलेशन दे रखे हैं टेबल 5 में, देखिए अगर आप दोबारा से देखो उसको, हम्म, उसमें It हर is एक में उसने हाँ, सुखराज हेल्प करो। कोरिलेशन मैट्रिक्स को नहीं बनाई इसने, डायमेंशनल कोरिलेशन बता दिए हैं, और हर एक हाँ जगह जी, वो लिख रहा है, पी प्रोबेबिलिटी साथ दे रहा है। हम्म, तारे भी हाँ बना जी रहा है, सर, probability बना रहा है, वो वो कॉलम तिथि फालतू है। 3 स्टार ला रही है जी। हाँ, 3 स्टार कैसे लगा दिया हमारे पास? तो कोई भी टेबल ऐसा नहीं किताबों में जो 3 स्टार को देता हो। हम्म, जी और तो जो नीचे उसकी सेकंड रो चल रही है प्रोबेबिलिटी की, वो लाइन वहां नहीं आनी चाहिए थी। हम्म, हाँ जी वो एसपीएस की कोर्स ने सीधा ट्रांसफर कर रहा है उधर टेबलों में। हम्म, और जो प्रोबेबिलिटी नीचे टेबल में कौन सी दे रहा है, जो टेबल के नीचे दे रहा है वैल्यू, वो कौन सी दे रहा है? वो दे रहा है 0.5 दे रहा है, जबकि तारे कैसे लग के आ रहे हैं? जो तारे लग के आ रहे हैं वो तारों का नीचे सिग्नल होना चाहिए था ना। हाँ जी, एक दा इस अलग, पे, दो दा अलग थे। हाँ जी सर। हाँ, तो ये पेपर को हम कई बातों को देखते हुए, इसके रिजल्ट्स को देखते हुए और इसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को देखते हुए, इस पेपर को हम कोट नहीं करेंगे। रिपोर्ट करना है जो इन पर हम करके ले रहे कोलेशन से, उतना कर हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इट नाउ डिपेंड्स अपॉन दी researcher's interest whether he or she wants to retain this paper or reject it। और अगर मैं चाहूँगा तो आई विल रिजेक्ट इट, क्योंकि ये पेपर रिसर्च के मापदंडों के ऊपर बिल्कुल ही ठीक नहीं उतर रहा है। आई थिंक वी आर एबल टू से अबाउट दिस पेपर। सर सर तो इसको वी कैन यूज एज अ पर्सनल रेफरेंस, जैसे आपने बोला कि अपना लिटरेचर बिल्ड करो, अपना वोकैबुलरी बिल्ड हाँ करने के यस, लिए हाँ वो रेफरेंस तो के मेरे को लिए हेल्प यूज करेंगे, करेगा, पर हाँ फाइट नहीं हाँ। करेंगे। हम्म। यस सर, ओके। तो सर नेक्स्ट पेपर पे मूव करते हैं, यस। हाँ, नेक्स्ट पे करते हैं। ठीक है। वो पेपर है हमारा होम एनवायरनमेंट एंड क्लासरूम क्लाइमेट का, यस सर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर रिलेशन टू स्टूडेंट्स एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट इन अ स्ट्रीम्ड सेटिंग। यस सर। 4 बातें आ रही है ना, होम एनवायरनमेंट आ रहा है, क्लासरूम क्लाइमेट आ रहा है, उनका रिलेशनशिप किसके साथ है? स्टूडेंट के सेल्फ एकेडमिक कॉन्सेप्ट के साथ है। कहाँ पे? इन अ स्ट्रीम्ड सेटिंग। यस सर। वो स्ट्रीम्ड सेटिंग क्या कर रखी है इसने? जो हांगकांग में स्कूल है ना, उनमें हाई एबिलिटी और लो एबिलिटी ग्रुप्स बन जाते हैं स्कूलों के हिसाब से ना, तो यस। उस तरीके से ने करा हुआ है। इसकी बाकी बात को छोड़ते हुए हम इसके सीधा ही उसमें जाते हैं एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। टेबल नंबर 1, पेज नंबर 247। हाँ सर। उसमें आप देखोगे फर्स्ट कॉलम में क्या दिख रहा है? टाइम 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 टाइम। यस टाइम सर। के साथ आपको ABCD दिख रही है ना, 0 यस। 1 2 3, 0 1 2 3। यस सर। ये लॉन्गिट्यूडल स्टडी है, ये लॉन्गिट्यूडल स्टडी है। तो इस लॉन्गिट्यूडल स्टडी में उसने 4 बार डाटा कलेक्ट किया है स्टूडेंट से। हम्म, यस सर। और जो पहले में हम कॉलम रखेंगे, पहले में तीन तीन रोज हैं, दिख रहे हैं 3 रोज। यस सर। सेल्फ की है, कॉन्फिडेंस की है और एफर्ट की है। यस सर। ये तीनों ही उसका डिपेंडेंट वेरिएबल जो एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसकी डायमेंशन है। यस। और थर्ड कॉलम में जब स्ट्रेंथ वो दिया है स्टीम, तो 2 ग्रुप बन के है ना, हाई एबिलिटी लो एबिलिटी। हाई एबिलिटी वो जो उसने कहा है ना, स्ट्रीम्ड सेटिंग में 2 है, एक हाई एबिलिटी ग्रुप है, एक कौन सा ग्रुप है? लो एबिलिटी ग्रुप। यस तो सर। उसका फिर उसने जो उसका होम एनवायरनमेंट है, क्लासरूम क्लाइमेट है, तो उसके साथ उसके वेरिएबल हैं, वो उसका नीचे एब्रीविएशन दे रखा है। हाँ तो सर। उनके वो कोलिशन रिपोर्ट कर रहा है। यस सर। और जहाँ पे उसने एंड में जो टेबल के बिल्कुल नीचे है, जहाँ पे कोई स्टार इस्तेमाल नहीं किया है,
इसने नीचे लिख दिया है कि ऑल कोरिलेशन आर सिग्निफिकेंट एट पॉइंट 0 1 लेवल, लिख दिया ना, Yes, sir. 001, ये 001 कह रहा है। Yes, sir. तो सैंपल साइज इसका कितना था? अब हमारे को एक बार सैंपल देख लें इसका कितना है। वी गो बैक टू द सुखराज, चेक करो तो सैंपल इसका। मैंने नोट कर लिया था, कहीं मेरे से अब स्किप हो रहा है। वो है, यस, ऑन पेज नंबर 244 284 Yes, नहीं sir. 495 है। मैक्सिमम सैंपल देख रहे 495, 284 उसके अंदर है हाईबिलिटी वाले और 211 है लो बिलिटी वाले, 255 मेल है, 240 फीमेल है। Yes, तो जब sir. इसने हाईबिलिटी लो बिलिटी करा ना, तो 234 और 211 का सैंपल साइज यहाँ पे एन इसको मेंशन नहीं करा है। हाँ. मिसिंग है ना एलिमेंट है जहाँ पे टेबल में। तो मिस्टर सुखराज 0.21 का कोरिलेशन सिग्निफिकेंट 0.21 दिख रहा है मेरे को नीचे कहीं। मिनिमम वैल्यू मेरे को 0.21 नजर आ रही है। दिख रही है वैल्यू ये आपको कोरिलेशन की? Yes, sir. 0.55 ऐसे दिख रही है ना, 0.36 Yes. 0.37 0.21 दिख रहा है मेरे को। चौथी स्लैब में जाके नीचे कॉन्फिडेंस वाले में लास्ट में देखिए लो बिलिटी में 0.21 दिख रहा है 21। Yes, sir. लास्ट कॉलम में नीचे से थर्ड वैल्यू Peer में. दिख रही है Yes, sir. 0.21 और मैक्सिमम जो 0.55 नजर आ रहा है मेरे को, इससे बड़ी वैल्यू है कोई? 0.55 नजर आ रहा है। आई थिंक 0.55 की बड़ी मान के Sir, चलेंगे। 0.62 भी है. 60 का है सर। हाँ 0.62 भी है. तो 62 भी है, ओके। लास्ट में. फोर्थ कॉलम सर। फोर्थ कॉलम में लास्ट में First होम row. के अंदर लोअर एबिलिटी में. ओके 0.62 है। हाँ जी ठीक हो गया। तो इसका मतलब जिसके कोरिलेशन निकल के आए वो 0.21 से लेकर 0.62 तक जा रहे हैं। Yes, sir. तो उसको एक्सप्लेन पता क्या करना था, जो होम एनवायरनमेंट है वो वन सिचुएशन टू द सेकंड, सेकंड टू द थर्ड, थर्ड टू द फोर्थ, कोई तब्दीली दिख रहा है हमारे को? 0.55 सेकंड टाइम रह गया है 0.53। सेल्फ का ही पढ़ रहा हूँ मैं। Yes, sir. फिर 0.54, फिर 0.55 वही रह रहा है। सेल्फ का कोरिलेशन ऑलमोस्ट वही रह रहा है। फिर 0.53, फिर है 0.53 अगेन हाई में देख रहा हूँ मैं अभी। तो समझ कैसे देखना है इस टेबल को? Yes, sir. कि एक सिचुएशन से एक राउंड जो स्टूडेंट को पहले राउंड में आ गया और लास्ट राउंड तक उसके जो रिलेशनशिप है बिटवीन होम एनवायरनमेंट एंड सेल्फ डायमेंशन ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसमें रिलेशनशिप में कोई तब्दीली हो रही है कि नहीं हो रही है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेबल है उसका। दिख रहे Yes. पहले वैल्यू दिख रहे हैं, कितनी वैल्यू दिख रही है इसके अंदर हमारे को? हम कॉलम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है और नीचे एक में 4 दूनी 8, 6 दूनी 6 6 6 चौका 24, 24 गुणा 6 7, 24 गुणा 7 इतने कोरिलेशन दिख रहे हैं इसके अंदर। तो थीसिस में लिखना होगा तो सुखराज जी कितने हमारे को चाहिए होंगे पेजेस? हेलो हेलो। हाँ जी सुखराज, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थीसिस में लिखना हो तो इसको हम इतने को कितना पेज लिखने के यूज करेंगे? 168. ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰ ਇੱਕ हाँ ਪੈਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। डायमेंशन वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर आपका टाइम फैक्टर है। हाँ जी तो सर। एक टेबल में बहुत कुछ कर रखा है इसने।
ये पेपर का स्टाइल होता है, थीस का स्टाइल नहीं होएगा। स्कॉलर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये थीस का स्टाइल नहीं है, ये पेपर का स्टाइल है। ठीक, इसने वो उसको बहुत ही ब्रीफली सम अप करा है। इंटरेस्टिंग है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए जरा। Yes, sir. Table 2. हाँ, टेबल 2। Yes, sir. Stepwise इसमें regression. हाँ, और होम एनवायरनमेंट क्लासरूम क्लाइमेट स्केल ऑन Academic एकेडमिक performance. स्केल, हाईबिलिटी ग्रुप का। टेबल 3 किसका है? So table 3, lower ability stream students का हाँ, regression. समझे ना, जहाँ Yes. उसने टेबल अलग कर दिए, हाई एबिलिटी के, लो एबिलिटी के। तो कोलिशन भी हाई एबिलिटी के, लो एबिलिटी के अलग अलग होने चाहिए थे, टू हैव एन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिजल्टेंट वैल्यूज। Yes, sir. हाँ, तो इसमें आपको सेकंड कॉलम में आर स्क्वायर दिख रहा है ना, थर्ड कॉलम में आर स्क्वायर, Yes. ये सर दिख रहा है ना। Yes, sir. तो आर स्क्वायर में पहले टाइम में कितनी दिख रही है? 0.355, 0.450। दूसरे में 0.364, 0.429, फिर 289, 358, 0.298, 0.391। तो Yes. उसमें जो वेरिएबिलिटी है वो मिस्टर सुखराज, जी सर। हाँ, जो आर स्क्वायर चेंज बता रहा है ना नेक्स्ट कॉलम में, जी आप देख रहे हो ना, नेक्स्ट में आर स्क्वायर चेंज क्लासरूम क्लाइमेट हाँ का जी सर। कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, होम एनवायरनमेंट का लेसर है। जी सर। 0.095 रह गया ना पहले राउंड में। हाँ जी सर। सेकंड टाइम पहुंच गया 0.065। जी सर। तो फिर रह गया 0.069। 069 जी सर। इसका मतलब है कि जो क्लासरूम क्लाइमेट है, क्लासरूम क्लाइमेट पहले 2 राउंड में क्लासरूम क्लाइमेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, और टाइम 2 और टाइम 3 में जाके होम एनवायरनमेंट कर रहा है, क्लासरूम क्लाइमेट नहीं कर रहा है। ऐसे ही बना ना। पहले में वेरिएबल नंबर 1 कौन एंटर करा? क्लासरूम क्लाइमेट। Yes, sir. दूसरे में कौन सा आया? होम एनवायरनमेंट। Yes. सेकंड टाइम में, टाइम 1 में क्लासरूम क्लाइमेट और होम एनवायरनमेंट। जब टाइम 2 में गए तो होम एनवायरनमेंट पहले नंबर पे हो गया ना, Yes, sir. और होम एनवायरनमेंट नंबर 2 पे चला गया। नहीं, होम एनवायरनमेंट नंबर 1 पे आ गया, क्लासरूम क्लाइमेट नंबर 2 पे चला गया, और Yes, टाइम sir. 3 में भी ऐसा ही हुआ है। तो इसका Yes. मतलब जो पहले 2 सेट ऑब्जर्वेशन के हैं हाई एबिलिटी ग्रुप में, वहां पे क्लासरूम क्लाइमेट मैटर करता था। जैसे जैसे उनका पढ़ने का ड्यूरेशन बढ़ता गया, वहां पे क्लासरूम क्लाइमेट का कंट्रीब्यूशन कम हो गया और होम एनवायरनमेंट का बढ़ गया। Yes, sir. अब नीचे लो एबिलिटी में आ जाइए। क्लासरूम क्लाइमेट, होम एनवायरनमेंट, क्लासरूम क्लाइमेट, होम एनवायरनमेंट, क्लासरूम क्लाइमेट, होम एनवायरनमेंट, और तीसरे में जाके होम एनवायरनमेंट और क्लासरूम क्लाइमेट हो गया। लो एबिलिटी ग्रुप में क्लासरूम क्लाइमेट जाके नेग्लिजिबल हो जाता है। कहाँ पे? चौथे साइकिल में। Yes, sir. डिफरेंशियल दिख रहे हैं ना अब ये आपको, है? Yes, sir. जो मैं शुरू में बोला था कि जब हम अंडरस्टैंड की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू मेमोराइज, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन ट्राई टू रिफ्लेक्ट। ये अब रिफ्लेक्शन है मेरी, कि पहले 2 राउंड में हायर एबिलिटी में एक जैसे रिजल्ट रहते हैं, जबकि सेकंड थर्ड राउंड में और फोर्थ राउंड में होम एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट लेसर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जबकि लोअर एबिलिटी में 3 स्टेजेस में तो क्लासरूम क्लाइमेट में बेहतर रहता है, लेकिन चौथी स्टेज में जाके क्लासरूम क्लाइमेट नेग्लिजिबल हो जाता है। 2 और 3 को मैंने इकट्ठा जोड़ के बोल रहा हूँ ना अब। Yes, sir. आई थिंक कुछ समझ आया, कुछ आया समझ। Yes, sir. हाँ, तो ये उसको ने टेबल बहुत ज्यादा कंडेंस करे हैं और पेपर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अब इसके एब्स्ट्रैक्ट में आ जाइए, पहले पन्ने पे।
Yes, sir. हाँ, तो आप लाइन ये लास्ट लाइन पढ़ दीजिए एडिशन स्टेप बाय। In comparison, higher ability stream students perceived parental academic support